A very good evening, my dear friends. This side CA Manoj Lamba from Chandigarh. Friends, please tell me by writing in the chat box whether I am properly audible. Is my voice is coming properly? Thank you, Sanjay ji. Every participant is requested to write their introduction in the chat box. Meanwhile, in first 2 minutes of this session, I welcome Gurveen Narang ji, Vijay Narayan ji, Sameer Garg ji, Rakesh Jain ji, Sanjay Rathod ji, Arun Kumar Jain ji, Surendra Kumar ji, Girish Kumar ji, Pritam ji, Krishan Kumar ji, and every participant who is still to join in their absentia. I welcome every one of you for sparing your valuable time this Sunday with me, because the Sunday evening is a special evening which you specially kept for your families and kids. And today is the Father's Day, and I also I also wish my best wishes to all the fathers and friends. Now I am taking one more minute before starting my deliberation because I have a bad throat today. I am not able to speak loudly today, but I am taking the class. Friends, my humble request to all of you to please write your introduction in the chat box, and another request to use this chat box to the maximum extent so that we can make this token interactive one. So friends, without wasting much time, I am straightforward coming to my topic, that is one click full audit. The name is very catchy. The name is very catchy कि how we can complete the full audit just in one click. It is just a imagination or it can be possible. This is the my question to you. ये इमेजिनेशन है क्या वास्तव में पॉसिबल हो सकता है मेरे दोस्तों? मैंने टाइटल चुना वन क्लिक फुल ऑडिट. It is just a imagination or it can be actually possible. Please write in the chat box yes or no. Yes or no. Meanwhile, I am sharing my PPT with you people. Whether my PPT is visible to you all, please write yes or no in the chat box. My PPT is visible to you or not? Please write yes or no. Thank you, Sanjay ji. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. So without wasting much time, I'm straightforward coming to my topic. One click full audit, revolutionizing CA practice with AI powered financials and ledger scrutiny. Click once, audit smart, empower your practice. This is the theme line for today's session. It is all about me, myself, CA Manoj Lamba, practicing from last 20 years in the field of auditing and taxation. And now I am trying to adopt. I'm a student of this technology. I am trying to learn. I am trying to adopt. I am trying to teach this AI to the my fellow members. So click once, audit smart, empower your practice. What's broken in today's audit process? Why we need this AI audit? Why we need this one click audit, my dear friends? The first reason is manual data entry and reconciliation. As you know that still still today, most of our exercises, most of our tasks are manual one. Data entry and reconciliation we are doing in a manual way. Traditional method require extensive manual work. So in the time of this digital technology, in the time of this digital governance, friends, it's very necessary for everyone to change themselves from manual data entry and reconciliation. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हम तो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो ये जो है
हमारा मैनुअल वर्क नहीं है। लेकिन आज के इस एआई के युग में जहां सब कुछ क्लिक बेस्ड है, जहां सब कुछ रीजनिंग बेस्ड है, जहां सब कुछ सुपर फास्ट है, वहां पर जो कंप्यूटर पे भी हम काम कर रहे हैं वो मैनुअल वन है। बहुत सारी ऑडिट के अंदर पर्टिकुलर टास्क मैनुअल वन है जो हमें कंप्यूटराइज वे में, टेक्नोलॉजिकल वे में लानी जरूरी है। सेकंड थिंग, टाइम कंज्यूमिंग लेजर स्क्रूटनी आर स्पेंट रिव्यूइंग ट्रांजैक्शन डिटेल। आज के टाइम में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पहली समस्या तो ये है कि क्लाइंट डेडलाइन पर आपके ऑफिस विजिट करता है। The clients comes on the last date. You have no time for the ledger scrutiny. They don't want to provide any information to you. You have to grab it to uh, to save your skin. To save your skin. So I am giving you a tip. I am giving you an idea to converting this time-consuming tricks into a detailed ledger scrutiny with just a click of mouse. Just with a click of mouse, your entire ledger scrutiny can be done within a fractions of second, within a few seconds. Getting my point? And third reason is high chances of oversight or fatigue. Human nature है, कुछ देर काम करने के बाद, थोड़ी एनर्जी लगाने के बाद हम लोग थक जाते हैं, हम रुक जाते हैं। हाई चांसेस ऑफ ओवरसाइट एंड फटीग इंसिस्टिंग अस टू अडोप्ट टेक्नोलॉजी। क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि दिन में 8-10 घंटे मैंने काम कर लिया, 8-10 घंटे एक टास्क पे लगा दिए तो थक जाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी थकती नहीं है दोस्तों। टेक्नोलॉजी से जितना काम लोगे उतनी स्मार्ट हो जाएगी। तो जो हमारे ऑडिट प्रोसेसेस में प्रॉब्लम थी, चाहे वो मैनुअल डाटा एंट्रीज की थी, चाहे वो रिकंसिलेशन की थी, चाहे वो टाइम कंज्यूमिंग लेजर स्क्रूटनी की थी, चाहे वो हाई चांसेस ऑफ ओवरराइट की थी, चाहे वो फटीग की थी, चाहे वो लिमिटेड एनालिटिकल इनसाइट की थी, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे एआई का प्रयोग कर कर आप इन सभी समस्याओं का अंत कर सकते हैं और एक नए टेक्नोलॉजिकल वे है अपने ऑडिट को अंजाम दे सकते हैं। तो टैगलाइन फॉर दिस टाइम इज ओल्ड टूल न्यू चैलेंजेस। प्लीज नोट दैट old tool new challenges, time to upgrade now, time to upgrade now. So old tools new challenges, time to upgrade. Now the case for AI in auditing, the case for AI in auditing, need for scalable audit workflow। दो तीन बातें आपसे खास साथ करूंगा स्क्रीन को बंद करके। पहले तक हम क्या कर रहे थे, वी आर डूइंग सैंपल बेस्ड ऑडिटिंग। किसी बड़ी कंपनी के ऑडिट पे हम जाते थे या बैंक ऑडिट पे जाते थे या कोई वैल्यूमिनस ट्रांजैक्शन वाले ऑडिट पे जाते थे, तो बीइंग ए ऑडिटर हमारे लिए समय के कंस्ट्रेंट के कारण, एनर्जी के कंस्ट्रेंट के कारण, स्टाफ के कंस्ट्रेंट के कारण ये संभव नहीं होता था कि हम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को ऑडिट कर पाएं। तो हम क्या करते थे, इंस्टीट्यूट की गाइडेंस के अनुसार ऑडिट सैंपलिंग के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते थे और एक सैंपल सेलेक्ट करते थे जो होल डाटा का रिप्रेजेंटेटिव होता था। यही लोग करते थे, हम के नहीं करते थे? लिखिए यस या ना, यस और नो। व्हाट वी आर डूइंग टिल नाउ, being a auditor, what we are doing our audit on sample basis, is it true or not? यही करते थे सर। हम कहते थे कि हर ट्रांजैक्शन को 100% ऑडिट करना संभव नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने, जैन साहब, इसे संभव बना दिया है। कौशल जी, इसको संभव बना दिया। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कर क्या यह संभव है कि अगर मैं रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहा हूं, मैं टाटा की किसी बड़ी कंसर्न का ऑडिट कर रहा हूं, मैं किसी बड़ी बैंक ब्रांच का ऑडिट कर रहा हूं जिसकी 10,000 ब्रांचेस हैं और उसका मैं रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट करना चाहता हूं, सैंपल बेस्ड ऑडिट नहीं करना चाहता, तो एआई ने दोस्तों ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि आप 100% ट्रांजैक्शंस को ऑडिट कर पाएंगे। आपको सैंपल ऑडिट अब खत्म हो जाएगा और ये एक हमारे ऑडिटिंग के प्रोफेशन में बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है, बहुत बड़ा चेंज होना जा रहा है, रिवोल्यूशनरी चेंज होने जा रहा है।
इज इट ट्रू और नॉट? क्या ये संभव हो पाएगा? जैन साहब, कौशल जी, सिमरन जी, एवरीवन प्रेजेंट हियर, इज इट पॉसिबल? जैन साहब कह रहे हैं बिल्कुल पॉसिबल हो पाएगा। कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आज हम डेमो पे ज्यादा टाइम लगाएंगे, डिस्कशन पे कम समय लगाएंगे। आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा एक क्लिक में सर। देन डिमांड फॉर रियल टाइम वैलिडेशंस, डिमांड फॉर रियल टाइम वैलिडेशन। सेकंड, रेगुलेटरी प्रेशर ऑन एक्यूरेसी। सर हम सैंपल बेस्ड ऑडिट करते थे, जबकि गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या चाहती हैं कि हर ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग मिले। हमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का ऑडिट नहीं कराना है, हमें सैंपल बेस्ड ऑडिट नहीं कराना है, हम रियल टाइम इंस्टेंट ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट कराना चाहते हैं। तो इसके लिए एआई की हमें सहायता लेनी पड़ेगी। तो हम ऑडिटर्स को अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने काम के ढंग को चेंज करना पड़ेगा। कैसे हम गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर पाएंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। थर्ड थिंग, डिमांड फॉर रियल टाइम वैलिडेशन। हर काम, हर एक्शन फास्ट चाहिए, फास्ट और फास्ट चाहिए हमको। तो फास्टर वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी हमें एआई को ऑडिटिंग में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद सर, ग्रोइंग कम्प्लेक्सिटीज, ग्रोइंग कम्प्लेक्सिटीज। कौशल जी, आज के टाइम में क्या हो रहा है? अभी आपने देखा कि अभी तक हमारे कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल बनते थे। और जैन साहब अब क्या हुआ है? अब इंस्टीट्यूट ने मैंडेटेड कर दिया है, मैंडेटेड, नॉट वॉलंटरी, इट इज मैंडेटेड बाय द आईसीआई नाउ कि यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज even in vertical form on comparative basis. Getting my point? And it has certain parameter, it has certain rules, it has certain standard, it has certain accounting standard and regulation have to be followed. और हम आज ये सोच रहे हैं कि अब जब ऑडिट को 2 या 3 महीने रह गए हैं कि कोई ऐसा जादू की छड़ी मिल जाए जिससे कि मेरी सारी फाइनेंशियल्स 1 मिनट में बन जाए। तो ये क्या जादू की छड़ी मिल गई है सर? क्या ये जादू की छड़ी मिल गई है? अभी आपको हम दिखाएंगे कि ये जादू की छड़ी मिली है कि नहीं मिली, और अगर ये जादू की छड़ी मिली है तो ये कैसे काम कर पाएगी, ये जादू की छड़ी मैं आपको आज दूंगा। सर आगे चलते हैं। ग्रोइंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, मॉडर्न बिजनेस रिक्वायर मॉडर्न टूल। जितनी हमारी मॉडर्न ट्रांजैक्शंस हैं, जस्ट अ मिनट, जितना आज का मॉडर्न एनवायरनमेंट हो गया है वो मॉडर्न स्क्रूटनी मांगता है। कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेगुलेटर्स ने हमारे कंधों पर डाल दी है। कहीं हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करने हैं, कहीं कारो रिपोर्टिंग देखनी है, कहीं 43BH का कंप्लायंस देखना है, कहीं टीडीएस रिपोर्टिंग देखनी है, इनकम टैक्स ऑडिट में भी जीएसटी रिपोर्टिंग देखनी है। लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द ऑडिटर्स। ऑडिटर्स को एक आकर्षण केंद्र के रूप में देखा जा रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही एक ऐसी बिरादरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमारी इस समस्याओं को, इस एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकती। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन उसके लिए कितना तैयार हैं? क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के यूज के, बिना ऑटोमेशन के, कौशल जी अब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है सर। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब यहां पे आते हैं जो आज का मुद्दा है हमारा, इंट्रोड्यूसिंग वन क्लिक फुल ऑडिट। इंट्रोड्यूसिंग वन क्लिक फुल ऑडिट, अपलोड बैलेंस शीट, गेट ऑडिट इनसाइट्स, सिंपल वन स्टेप प्रोसेस टू बिगिन। आपने बैलेंस शीट अपलोड करनी है, सारे ऑडिट इनसाइट मिल जाएंगे। आपने लेजर भी नहीं देना है, इन डेप्थ लेजर स्क्रूटनी हो जाएगी, हर एक लेजर की एंट्री चेक हो जाएगी। comprehensive analysis of all entries, all flag risk errors anomalies instantly deducted by AI, and whatever documentation required, Kaushal ji, whether appointment letter, whether communication with the previous auditor, whether NOC from the previous auditor, whether management representation letter, many certificates we have to taken from management, all these certificate, all these representations, all these documentation, all this audit plan, all this audit program, all this documentation list, all these permanent or continuous file as mandated by the ICI is to be automated and just be generated with a one click.
तो आपके लिए जो हम लोगों ने हर टूल डेवलप किया है, ये सिर्फ आपकी बैलेंस शीट का ऑडिट नहीं करेगा, बैलेंस शीट तो बनाएगा ही बनाएगा, आपकी लेजर स्क्रूटनी भी करेगा, आपको सारी ऑब्जर्वेशन, सारी डिविएशंस, सारे कम्युनिकेशन, सारे अपॉइंटमेंट लेटर, सारे रिप्रेजेंटेशन लेटर, सारे सर्टिफिकेट हर आपके लिए बना देगा, आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, वो भी आईसीआई के स्टैंडर्ड्स के अनुसार। तो है ना इमेजिंग? कितने लोगों को लगता है इमेजिंग रहने वाला अगर ऐसे हो जाए? मदान साहब कह रहे हैं कि इमेजिंग है, कौशल जी कह रहे हैं इमेजिंग है। तो इस इमेजिंग को आप देखते हैं, इमेजिंग कैसे है सर, वन बाय वन देखेंगे, 2 मिनट बन रही है। इसके अलावा जो सब कुछ है ये जस्ट कुछ ही समय में हो जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूं कि एक क्लाइंट आपको शाम 11 बजे 30 सितंबर को आपके ऑफिस में आता है, 30 सितंबर ऑडिट की डेडलाइन है, किताबें लिखी नहीं हुई हैं, कह रहा है कि हर ऑडिट करना है। क्या आप 30 मिनट के अंदर किताबें लिख भी सकते हैं और उसका ऑडिट भी कर सकते हैं और ऑडिट रिपोर्ट अपलोड भी कर सकते हैं, अलोंग विद कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं? क्या ये संभव हो पाएगा, या मैं आपको ख्वाब दिखा रहा हूं या सपने दिखा रहा हूं? वास्तव मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं आपको कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा, कोई सपने नहीं दिखा रहा, अभी मैं आपको ये संभव करके दिखाऊंगा संजय जी। अभी हम आपको ये संभव करके दिखाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनसाइड द एआई ऑडिट इंजन, इनसाइड द एआई ऑडिट इंजन कैसे होगा सर? अभी तक तो हमने बातें की कि ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, यस पॉसिबल विद योर सपोर्ट। थैंक यू कौशल जी, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएबल वर्ड फॉर मी, ऑलवेज encouraging me to do something innovative. You are my big brother and I always appreciate your views. Friends, अब आपको एक चीज और बताता हूं मैं भाई, ये कैसे संभव हो पाएगा, थोड़ा सा ये भी समझना है हमें। ये नेक्स्ट स्लाइड आप एक मिनट देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर आप देख रहे हैं, OCR फॉर डाटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम लेजर। व्हाट इज दिस OCR? ये OCR क्या होता है, कितने लोग से जानते हैं? OCR इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आज से कुछ साल पहले ये बैंकिंग इंडस्ट्रीज में चेक की क्लियरिंग के लिए यूज होता था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हमें एआई में लगाना है अपने ऑडिट करने के लिए। मैंने संयम जी इसको एक कागज दे दिया, एक बिल दे दिया, एक लेजर दे दिया और कहा कि इस लेजर को एक्सट्रैक्ट करके बताओ एज ए आर्टिकल क्लर्क और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कि इस लेजर में क्या कमियां है, क्या डिविएशंस है। एक लेजर मैंने इसको दे दिया और कहा इसमें बताओ कौन कौन सी पेमेंट 45 दिन के बाद आ रही है, मेरे को एमएसएमई की रिपोर्टिंग करनी है। एक लेजर मैंने इसको दे दिया कि ब्याज भी कैलकुलेट कराओ सेक्शन 16 ऑफ एमएसएमई एक्ट, जो हमारे लिए समस्याएं हैं, जो काम हम कहते थे कि हम नहीं कर सकते। जैसे क्लोज 44 आई जीएसटी रिपोर्टिंग के लिए, तो संयम जी हमने लिखना शुरू किया कि हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, हमारे पास तो डाटा ही नहीं है, हम तो कैपेबल ही नहीं है ये करने के लिए। तो हम डिस्क्लेमर डाल देते थे क्वेश्चन जी। फिर हमारे पास टीडीएस रिपोर्टिंग आया, हमने वो नहीं किया। अनसिक्योर्ड लोन की रिपोर्टिंग करवाने को कहा, वो नहीं किया। इन्वेंट्री मांगते हुए सरकार को हालो हो गए, क्वांटिटी डिटेल हमने आज तक नहीं दी। 43BH आया, हमने नहीं दी। यानी 44 क्लासेस जो हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की हैं, उसमें से 42 में तो हमने अपने डिस्क्लेमर डाल ले। एक बचता है नाम और एक बचता है पैन नंबर, वो हम भर देते हैं, बाकी नील नोट एप्लीकेबल, या जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सीनियर्स ने हमें सिखा दिया था कि इस वाले में ना ये लिख देना। जैसे इन्वेंट्री वाले में हम कह रहे थे, ड्यू टू द नेचर ऑफ ट्रेड इट इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द स्टॉक। 44 क्लोज में क्या लिख देते हैं, ड्यू टू दी a separate record has been maintained for GST and income tax purposes which are not reconciled. Due to that reason, we are not able to make the reporting requirement of section 44, clause 44 of form number 3CD. Getting my point? TDS नहीं का डाटा तो हमें पास डाटा नहीं है, हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड नहीं किया। हर जगह हम बहाने बनाते थे और अपनी स्किन बचाते थे और बचती रही। यही करते थे कौशल जी, कि नहीं करते थे? आज तक हम बहाने बनाते रहे, आज तक हम बहाने बनाते रहे और अपने आप को बचाते रहे। 44 में है, 42 तो नील बढ़ दो और 3CD अपलोड कर दो। और यही कारण है कौशल जी कि जीएसटी ऑडिट गया, बैंक ऑडिट गया, अब टैक्स ऑडिट भी जाएगा। जीएसटी ऑडिट गया, बैंक ऑडिट गया, टैक्स ऑडिट भी जाएगा, क्योंकि हमने कुछ करके नहीं दिया।
और आज टेक्नोलॉजी कह रही है आपके दरवाजे पे आके, कौशल जी, खटखटा के, कि मेरे को अपना लो, मैं आपका संकट मोचन हूं, मेरे को अपना लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कह रही है मेरे को अपना लो, मैं आपकी संकट मोचन हूं, मैं आपके सारे संकट हल दूंगी, मैं आपके सारे संकट हल दूंगी, कि प्रोवाइडेड आप इसे अडोप्ट कर लो। अडोप्ट कर लो तो अडोप्ट करना पड़ेगा, जो लोग अडोप्ट नहीं करेंगे वो उसको भूल जाएंगे। मैं एडवांस ऑडिटिंग की भी बातें करूंगा। आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के बाद। दूसरी बात है सर एनएलपी। एनएलपी के बारे में कितने लोग जानते हैं? थोड़ा फटाफट लिखिए, व्हाट इज एनएलपी? व्हाट इज एनएलपी? प्लीज राइट फास्ट, प्लीज फास्ट। एनएलपी है यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या होता है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? कौशल जी, संयम जी, जैन साहब, मैं आपको बताता हूँ। पहले तक कंप्यूटर से जो पूछा जाता था सर, वो आप लिख के बताते थे। गूगल से पूछते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो गूगल में लिखते थे। फिर हम वॉइस रिकॉग्निशन करना शुरू किया हमने। आज की डेट में एआई एनएलपी पे काम कर रही है, यानी दुनिया की हर भाषा ये समझने में सक्षम है। आप हिंदी में बोले, पंजाबी में बोले, कन्नड़ में बोले, मलयालम में बोले, स्पेनिश में बोले, फ्रेंच में बोले, जर्मन में बोले, इंग्लिश में बोले, किसी और लैंग्वेज में बोले, उर्दू में बोले, फारसी में बोले, हर लैंग्वेज दुनिया की ये समझती है और आपके क्वेश्चंस का आंसर देने में ये कैपेबल है। जो कंप्यूटर्स और एआई में फर्क हुआ, यही फर्क हुआ कि एआई ओसीआर पे काम कर रही है, एआई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम कर रही है। ये नहीं कहेगी कि भैया मेरे को कन्नड़ नहीं आती, इंग्लिश में लिखो, मेरे को मलयालम नहीं आती, इंग्लिश में लिखो, मेरे को स्पेनिश नहीं आती, इंग्लिश में लिखो, मेरे को चाइनीज नहीं आती, इंग्लिश में लिखो, मेरे को ये लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश में लिखो। एवरी लैंग्वेज इट इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। गेटिंग माई पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स? तो इससे क्या हुआ, कहीं आप जा रहे हैं, मैनेजर से बात कर रहे हैं या किसी मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, वो आपकी क्वेरी के रिप्लाई किसी और लैंग्वेज में देना चाह रहा है, ताकि ऑडिटर को आधी बातें समझ ही ना आए, ऑडिटर को आधी बातें समझ ही ना आए, तो आपकी एआई उसको पढ़ेगी, कन्वर्टर लगाएगी और आपको बताएगी। अब क्या होता था हर के कोर्ट्स में भी, लीगल प्रोसीडिंग में भी कौशल जी, कि जैसे हम एमएसएमई रिकवरी का काम करते हैं और दिल्ली वाली पार्टी ने कर्नाटक वाली पार्टी को माल बेचा हुआ है, जिसने पैसे देने हुए हैं वो जज साहब को आगे कहता था कि भैया मेरे को तो ना तो हिंदी आती ना तो इंग्लिश आती, मैं तो कन्नड़ में बात करूंगा। जी कौशल जी क्या कहते थे? कन्नड़ में बात करूंगा। और जज साहब कहते थे मेरे को तो इंग्लिश हिंदी आती है, कन्नड़ आती नहीं भैया। तो क्या होता था? मामला बीच में ही अटका रहता था। अब हर एआई कन्नड़ को हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगी। दुनिया के किसी भाषा में कुछ भी आप बोलेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये एआई से पॉसिबल है। आप मैनेजमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं, वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रही है, इवन देन इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर रिप्लाईज। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट सर? कितना रेवोल्यूशनरी चेंज आने वाला है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। एमएल, मॉडल फॉर रिस्क पैटर्न डिटेक्शन। एमएल क्या है सर? ये एमएल क्या है? अब मशीन लैंग्वेज, और एआई मशीन लैंग्वेज पे ही काम कर रही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरे को डेमो दिखाना है। रियल टाइम डाटा वैलिडेशन इस पे बात कर चुकी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑथेंटिक अश्योरेंस, इस स्लाइड का टैगलाइन मैंने क्या दिया सर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑथेंटिक अश्योरेंस। अभी तक आप जो अश्योरेंस देते थे, ऑडिट अश्योरेंस का काम करते हैं, यू आर दी ऑडिटर्स, एंड ऑडिटर का काम होता है रीजनेबल अश्योरेंस देना। और जो रीजनेबल अश्योरेंस होते थे आप कौशल जी, उस पर आप खुद ही डाउटफुल होते थे। लिख जो मर्जी दिया, बता जो मर्जी दिया, लेकिन उस रीजनेबल अश्योरेंस पर मेरे को ही कभी विश्वास नहीं हो पाया कि इस पन्ने पे मैं क्या लिख रहा हूं। तो अब एआई की वजह से आप ऑथेंटिक अश्योरेंस दे पाएंगे, क्वेश्चन ऑथेंटिक अश्योरेंस दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर।
artificial intelligence, authentic assurance. Now coming, what exactly gets audited by AI? AI से आप क्या क्या ऑडिट कर पाएंगे कौशल जी, मदान साहब, जैन साहब, क्या क्या कर पाएंगे? आपको क्या लगता है एआई से आप क्या क्या ऑडिट कर पाएंगे? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, थोड़ा जल्दी करते हैं। लेजर इनकंसिस्टेंसी, लेजर इनकंसिस्टेंसी थोड़ा सा उदाहरण से बताना चाहूंगा। अब कौशल जी के पास एक बड़ा वेलमुनस लाजर आया जो 5,000 अकाउंट है, जिसमें 5,000 अकाउंट है, 10,000 अकाउंट है। अब कौशल जी क्या करते थे, पहले स्टाफ को 100 लेजर बांट दिए, 10 लड़कों की ड्यूटी लगा दी स्टाफ की कि लगो टिक करो, टिक 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 टिक। लाल और हरा पेन उनके हाथ में पकड़ा देते थे, वो टिक करते रहते थे। और 2 महीने लगाने के बाद 5-7 पॉइंट नोट करके लाते थे, 2-3 मैनेजमेंट वाला चढ़वा देता था, 2-3 कौशल जी छोड़ देते थे। अल्टीमेटली सारी मेहनत का रिजल्ट होता था 0। अब एआई बेस्ड लेजर स्क्रूटनी सर आपकी ईच एंड एवरी एंट्री को स्क्रूटनाइज करेगी और आपकी किताब में जितनी भी लॉ की, अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की, जनरल सेंस में ऑब्जर्वेशंस हैं जो बीइंग ए ऑडिटर आपको ऑडिट कंप्लीट करने के लिए चाहिए कौशल जी, वो आपकी थाली में परोस को आपको दे देगी। अब इच्छा आपकी है कि उसमें से आपको क्या खाना है, आपके लिए बफे लगा देगी। गेटिंग माई पॉइंट? ऑब्जर्वेशन ढूंढना, अब कोई अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, कोई आर्टिकल असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये बफे आपके लिए तैयार होगा जिसमें बहुत सारा खाना होगा। और जैसे बफे में सेलेक्ट करते हैं ना कि हमें आज ये खाना है, तो आपको लिखने के लिए समस्या होगी कि भैया इसने तो 100 ऑब्जर्वेशन दे दी, कौन सी लिखूं कौन सी छोड़ू। कमाल है, इसके तो खाते ही सारे खराब है। पूरी इसके तो क्लीन रिपोर्ट क्या नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं दी जा सकती। यहाँ तो दाल ही काली है, दाल में नमक नहीं है, दाल ही काली है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इन सारी बातों को एआई हैंडल करेगी। 100% लेजर स्क्रूटनाइज होगी, 100% रिपोर्टिंग मिलेगी। जैसे कैश किन डेटों में नेगेटिव है ये बता देगी, 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट किस दिन हुई है बता देगी, 2 लाख से ज्यादा कैश की सिंगल ट्रांजेक्शन कौन सी है ये बता देगी, रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन कौन सी है ये बता देगी, एसेट में एडिशन कब कब हुई है ये बता देगी, एसेट में डिलीशन क्या क्या हुई है ये बता देगी, सब्सिडी की कौन कौन सी एंट्री आई है ये बता देगी, टीडीएस किन एंट्रियों पे नहीं कटा ये बता देगी, टीडीएस किन एंट्रियों पर कम रेट से कटा है ये बता देगी, टीडीएस लेट कहाँ डिपॉजिट हुआ है ये बता देगी, आपकी 44 की रिपोर्टिंग बना देगी, क्लोज 44 की जीएसटी वाली रिपोर्टिंग, आपकी 21 नंबर की ये रिपोर्टिंग बना देगी जो ईएसआई और पीएफ की रिपोर्टिंग है, उसके सारे डिले रिपोर्ट कर देगी, आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है, रेवेन्यू कैपिटल है ये बता देगी। आपके लिए 27 नंबर पॉइंट पे क्या लिखना है जो हम कभी नहीं लिखते थे कि ओपनिंग इनपुट का बैलेंस कितना है, अवेल्ड कितना हुआ, यूटिलाइज कितना हुआ और क्लोजिंग कितना हुआ, आपके लिए ऑटो कैलकुलेशन कर देगी। 26 नंबर में जीएसटी की लायबिलिटी कितनी है, स्टैट्यूटरी ड्यूज की लायबिलिटी कितनी है वो बता देगी। क्लोज 22 नंबर में एमएसए में संबंधित क्या रिपोर्टिंग करनी है वो बता देगी। क्लोज 18 का डेप्रिसिएशन चार्ट बना देगी। आपकी क्लॉज 3CD के बाजे बजा देगी, ये 3CD के बाजे बजा देगी और सारा कुछ आपके लिए ढूंढ के आपके सामने प्रस्तुत कर देगी। अब इच्छा आपकी है मदान साहब कि आपने क्या लिखना है क्या छोड़ना है, क्या लिखना है क्या छोड़ना है। आगे चलते हैं। अनयूजुअल जर्नल एंट्रीज आपको बता देगी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बता देगी, जीएसटी रिकंसिलिएशन। हमारे मदान साहब जीएसटी के बहुत बड़े एक्सपर्ट है, लोगों को सिखाते हैं ये 2A 2B कैसे मैच करना है, तो इनका काम भी कर देगी। मदान साहब कह रहे हैं कि ये जादू जल्दी से दिखाओ। मदान जी जादू देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा इंतजार कीजिए। संयम आपका नाम है, आप तो संयम बांधे रखिए। आप ही संयम खोल रहे हैं तो क्या होगा संयम जी, आप संयम बनाए रखें। उसके बाद फाइनेंशियल रेशो आउटलाइनर्स कर देगी सर। आगे चलते हैं। वाई सीए फर्म मस्ट इम्प्रेस विद दिस शिट। 70% टाइम सेफ, इसको छोड़ते हैं स्लाइड को, इस पर नहीं बात करते। रियल वर्ल्ड ऑडिट केसेस हमें कौन कौन से चाहिए होंगे सर? अब इस पे बात करने से पहले सर हमारे ऑडिट कौन कौन से होते हैं कौशल जी? हमारा इंटरनल ऑडिट होता है, हमारा जीएसटी ऑडिट होता है, हमारा टैक्स ऑडिट होता है, हमारा स्टैट ऑडिट होता है, या किसी स्पेशल एक्ट में कोई ऑडिट है तो वो होता है। तो हर तरह के ऑडिट करने की कैपेबिलिटी ये एआई टूल रखता है, हर तरह की ऑडिट करने की कैपेबिलिटी ये एआई टूल्स रखते हैं। आगे चलते हैं। आउटपुट जनरेटेड बाय एआई टूल।
एग्जीक्यूटिव समरी क्या है, लेजर वाइज कमेंट क्या है, रिस्क रेटिंग स्केल क्या है, जेपीटी जनरेटेड ऑडिट नोट्स। अब सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी कौशल जी, कि हम सब कुछ ढूंढ लेते थे, बहुत सारा इकट्ठा कर लेते थे डिविजन्स के लिए, लेकिन जब उसे ऑब्जर्वेशन में लिखने की बात आती थी तो दूसरे प्रोफेशनल भाई को फोन लगाते थे कि भाई साहब इस क्लॉज को कैसे लिखना चाहिए। क्लोज 44 का डाटा उसने दिया नहीं, मैं इसमें डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर में क्या लिखूं। इन्वेंट्री उसने बनाई नहीं, इसमें भी डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ, क्या लिखूं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन उसने दिखा नहीं रखी, इसमें कुछ लिखना चाहता हूँ, क्या लिखूं। हमें लिखना नहीं आता था, मतलब ड्राफ्टिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी पुअर थी। हम ढूंढ तो लेते थे, लेकिन ढूंढे हुए फूलों की माला कैसे परोनी है, इन ढूंढे हुए फूलों की माला कैसे परोनी है, ये माला हमें नहीं पता थी सर। अब एआई हमें सिखाएगी कि किस पॉइंट पर आप ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं कौशल जी, जैन साहब, किस पॉइंट पर आप क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं, और वो क्वालिफिकेशन कैसे लिखी जाएगी, वो मोती कैसे परोया जाएगा, ये दिखाते हैं सर। अब आगे चलते हैं। स्मार्ट प्रॉम्प्ट फॉर स्मार्ट रिपोर्ट, इसमें मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, पीपीटी आपसे शेयर कर दूंगा, तो इस पे बात नहीं करेंगे। जैसे इसमें आप क्या कर सकते हैं कौशल जी, कि जैसे आप कहते हैं कि मेरे को 10 मोस्ट सस्पिशियस एंट्रीज बता, ये 5,000 लेजर खाते हैं, इसमें 50,000 अनसस्पिशियस बातें हो सकती हैं, छोटी छोटी बातें ना बता, मेरे को तो 10 पावरफुल पॉइंट चाहिए जिससे मेरी ऑडिट रिपोर्ट सॉलिड नजर आ जाए। तो ये आपके लिए 10 ही ढूंढेगी सर, फिर फालतू काम नहीं करेगी। तो इस तरह के प्रॉम्प्ट आप डेवलप कर सकते हैं, वो प्रॉम्प्ट आपका भाई आपको डेवलप करके देगा। अब दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, जैसे पीएल बनाते थे तो हम प्रॉफिट सेट करने का काम करते थे, सीए क्या काम करते थे, प्रॉफिट सेटर होते थे। अब क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रू प्रॉफिट तो दिखाया नहीं जाता, कच्चे की किताबें अलग हैं, पक्के की किताबें अलग हैं। अब जब ट्रू प्रॉफिट दिखाया नहीं जाता, प्रॉफिट सेटर का काम हम करते थे, तो देखते थे कौन है खर्चे ज्यादा है, कौन से खर्चे कम है, इसका खर्चा बढ़ा दो, इसका खर्चा घटा दो, यहाँ डेप्रिसिएशन हटा दो, यहाँ डेप्रिसिएशन ना डालो, बैंक के लिए बैलेंस शीट में ये हटा दो, वो कर दो। ये काम हम करते रहे हरी उम्र। अब यहाँ पर एआई आपको ये बता देगी एक सेकंड से पहले कि कहाँ अबनॉर्मल एक्सपेंडिचर हुए, अबनॉर्मल एक्सपेंडिचर हुए, कहाँ विदाउट वाउचर एंट्री डली है, कहाँ ऐसे पार्टी से आपने परचेज बुक कर ली, खर्चा बुक कर दिया कौशल जी, जहां कोई बिल नहीं है, कोई इनवाइस नहीं है, यानी डम्मी एंट्री डाली गई है, बुक एंट्री डाली गई है, ये भी एआई आपको बता देगी। तो इसके भी प्रॉम्प्ट है। अब कहते हैं कि आप कि मेरे को ना बैलेंस शीट को एनालाइज करके बता दे। सपोज यूर क्लाइंट वांट टू इन्वेस्ट इन सम कंपनी, किसी कंपनी में उसने पैसे लगाने हैं, और आपके पास आया कौशल जी कि मेरे को ये बताओ इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक तरीका तो यह है कि कौशल जी उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह आप डाउनलोड करें एमसीए की साइट से, उसके ऊपर ड्यू डिलीजेंस करें, ड्यू डिलीजेंस के बाद अपनी रिपोर्ट बताएं। दूसरा यह है कि मेरा एआई टूल ले लें और सारी बैलेंस शीट को एनालाइज करने का काम कर दे, मिनटों सेकंडों में कर देगा, मिनटों सेकंडों में कर देगा, टोटल रेशियो एनालिसिस के हाथ आपको बता देगा। और जनरेट नोट्स फॉर फाइनल रिपोर्ट। अब आप कहते हो कि अंत में मेरे को यह बता दो भाई साहब कि फाइनल रिपोर्ट में लिखना क्या है, तो वो भी बता देगा, वो भी बता देगा। तो फटाफट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 4 स्लाइड बाकी हैं सिर्फ मेरी, उसके बाद कहते हैं द रोल ऑफ सीए इज नाउ एलिवेटेड। अब यहाँ पर लोगों को बड़ी समस्या है, जहाँ कहीं मैं सेमिनार पे जा रहा हूँ, क्योंकि इस समय मैं पूरे भारतवर्ष में घूम रहा हूँ और लोगों को एआई पे एजुकेट कर रहा हूँ, एमएसएमई और स्टार्टअप पे एजुकेट कर रहा हूँ। अब वहां पर समस्या क्या आती है, लोग कहते हैं कि फिर क्या सीए छनकने बजाएगा सर, जब सारे काम ही एआई कर देगा। तो कौशल जी लोग मेरे से पूछते हैं कि हम छनकने बजाएंगे क्या, तो मैं उनके कहते हैं हम छनकने नहीं बजाएंगे, अब आप पूरा बैंड बजाएंगे, क्लाइंट का बैंड बजाएंगे। एआई ने वो पावर दे दी है। पहले जब सरकार ने ये प्रोविजन लाए तो आप लोगों ने कहा कि भैया हमें तो क्लर्क बना के रख दिया, सारा काम हमें करना पड़ता है। अब एआई कह रही है सारी क्लर्की वाला काम तो मैं करके दे दूंगी, आप तो एनालाइज करो, सुपर ब्रेन की तरह यूज करो, सुपर पावर की तरह यूज करो, और क्लाइंट के बाजे बजाओ। तो वो बाजे बजाने का काम अब करेगा। तो सीए का रोल एलिवेटेड हुआ है, डाउनग्रेड नहीं हुआ।
सीए सुपर पावर बनने जा रहा है, डाउनग्रेड नहीं होने जा रहा। इस स्लाइड को जरूर देखिएगा हर। द रोल ऑफ सीए इज नाउ एलिवेटेड, यू रिमेन द फाइनल रिव्यूअर, you remain the final reviewer, professional judgment is still essential, you remain the final reviewer, professional judgment is still essential। सर आगे, AI act as an audit assistant, technological supports rather than replaces, then make your judgment faster and sharper, faster and sharper, enhance decision making with AI insights, then reduces audit fatigue। तो सारे काम कर रही है ये। फाइनल रिव्यूअर आप रहेंगे, आपके आर्टिकल असिस्टेंट और ऑडिट असिस्टेंट खत्म होंगे, आप नहीं खत्म होने वाले। आपकी जजमेंट, आपकी रीजनिंग स्किल, आपकी एनालिटिकल स्किल, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल, आपकी सोचने की पावर एआई बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं, प्रोवाइडेड कि इसको अपना नौकर रख लो, अपना एम्प्लॉय रख लो। और रिड्यूस्ड ऑडिट फटीग, जो परेशान हो जाते थे ऑडिट के दिन है, 4 दिन हो गए कौशल जी घर ही नहीं गए, ऑफिस में ही हो रहे हैं, वहीं खाना खाया जा रहा है, वहीं डिनर हो रहा है, वहीं ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो जो ये परंपरा थी हमारे प्रोफेशन में रातों जागने की, जो कहते थे कि वी बर्न मिडनाइट ऑयल, अब बर्न करने की जरूरत नहीं है, अब अर्न करो। अब बर्न जो करना था कर लिया कौशल जी, अब तो अर्न करो, बर्न को अर्न से रिप्लेस करो। रिड्यूसेस ऑडिट फटीग, लेस मैनुअल वर्क मींस फ्रेशर थिंकिंग। तो एआई इज नॉट रिप्लेसिंग सीए rather than supercharging them, rather than supercharging them, my dear friend। then what AI cannot or should not do, AI क्या नहीं कर सकती सर? अब ये भी तो बड़ा सवाल है कौशल जी, जाते जाते ये सवाल भी पूछने की बड़ी जरूरत है सर, कि अब कोई ऐसा काम भी तो बता दो लांबा जी जो एआई नहीं कर सकती। आपने तो कह दिया कि एआई सब काम कर देगी, तो हमारी जरूरत भी नहीं रही और क्लाइंटों को भी जरूरत नहीं रही। तो क्या नहीं कर सकती, उस पर भी थोड़ी ही चर्चा करेंगे। डस नॉट अंडरस्टैंड क्लाइंट स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, इंडस्ट्री नॉलेज, क्लाइंट हिस्ट्री रिमेन ह्यूमन डोमेन्स। अब कौशल जी प्लाईवुड इंडस्ट्री का ऑडिट करते हैं, प्लाईवुड इंडस्ट्री की जो नॉलेज इन डेप्थ है, उस इंडस्ट्री की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उनकी जो सेंस है, उनके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटीज हैं, उनकी जो प्रोसेसेस हैं, उनके मैनेजमेंट का जो बिहेवियर है, जो मार्केट का ट्रेंड है, वो एआई ह्यूमन से ज्यादा नहीं पढ़ सकती है। पढ़ तो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं करेगी, कर देगी, लेकिन उसमें गलतियां कर सकती है, वहां पर ह्यूमन रोल रहेगा। सेकंड थिंग सर, कैन मिस इंटरप्रेट मिसफॉर्मेटेड डाटा। अब कभी हमें कौशल जी जब हम सीए करते थे, कंप्यूटर नए नए आए थे, तो ये पढ़ाया जाता था गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर कंप्यूटर में डाटा ही गलत डालोगे, कबाड़ डालोगे, तो कबाड़ ही निकलेगा। आज इसका टर्मिनोलॉजी बदल गई सर। ये हारा का हारा खेल मदान साहब है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। और प्रॉम्प्ट क्या होता है सर? The instruction you given to AI to do the work, the instruction you given to AI to do the work। AI को काम करने के लिए जो आप देते हो वो प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट जितना बुरा होगा उतना बुरा रिजल्ट देगी, प्रॉम्प्ट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रिजल्ट देगी, प्रॉम्प्ट जितना उत्तम होगा उतना उत्तम रिजल्ट देगी। तो सारा खेल प्रॉम्प्ट का है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे भी हम एक अलग से प्रोग्राम लेके आएंगे, वहां पर हम डिस्कशन करेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। सर आगे चलते हैं, सर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब रिक्वायर ह्यूमन ओवरसाइट, प्रोफेशनल व्यू फॉर एएफ फाइंडिंग एशंस। एक और बड़ी बात एआई के लिए कौशल जी, कि आप एआई पर आंख बंद कर कर भरोसा नहीं कर सकते। लाइक कोई जजमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं आप, तो आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि एआई ब्लंडर करती है। ब्लंडर क्यों करती है? उसके 3 बड़े कारण है, यहां पे जो वो जरूर बताना चाहूंगा। पहला बड़ा कारण, हम लोगों को फ्री वाला माल चाहिए। चैट जीपीटी लेनी है तो फ्री ले लो, डीप सीक लेना है तो फ्री ले लो, क्लाउड लेनी है तो फ्री ले लो, जेमिनी लेनी है तो ले लो। स्टाफ को पहले बोलते हैं कि यार फ्री वाला टूल ढूंढ कोई। लांबा जी तो पैसे मांगते हैं हर चीज के, जो फ्री वाला काम हो जाए वो हो जाए। तो फ्री वाला काम
बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री वाला माल तो फ्री होता है, मेले में तो घटिया माल ही मिलता है, एक के साथ जो एक मिलता है वो फ्री जैसे ही होता है सर। अब दूसरी बात जो काम है, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझनी पड़ेगी। तीसरी चीज कि आपको जनरलाइज्ड जीपीटी से कस्टमाइज्ड जीपीटी पे जाना पड़ेगा, जो मैं बार बार कहता आया हूं, ये फिर अलग से चर्चा करेंगे जनरलाइज्ड और कस्टमाइज्ड में क्या फर्क है, लेकिन ये 3 कदम करने पड़ेंगे, आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट सर, एथिक एंड कॉन्फिडेंशियलिटी कंसर्न, 2 इश्यू बड़े एआई को लेकर लोगों को चिंतित कर रहे हैं कौशल जी, जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। हम प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम एथिक्स की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में एक एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड है, जहां पर वो हमें हर काम को प्रोफेशनल एथिक्स के साथ करने को कहते हैं, और अगर हम प्रोफेशनल एथिक्स में कहीं डिबेट कर रहे हैं तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कैन ब्रिंग और टेक एक्शन अगेंस्ट यू। इज इट ट्रू? तो क्या वो एथिक्स को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉलो करते थे, एआई भी उतनी शिद्दत और उतनी मेहनत से फॉलो कर पाएगी? टेक्नोलॉजी एथिक्स से कौन बना है सर? कौशल जी आप समझिए, एथिक्स से ह्यूमन बीइंग बने हैं, नेचुरल पर्सन बने। टेक्नोलॉजी एथिक्स के हाथ नहीं बंधी, उसके तो पंख लगे हुए हैं, वो तो उड़ती है। तो ऐसा संभव है उसे एथिकल बनाने के लिए हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बेहतर करें, उसे ऐसे काम करने के लिए कहीं जैसे एक प्रोफेशनल एथिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, ना कि आंख बंद करके बिहेव कर लें। तो जहां पर एथिक्स की बात आएगी, जहां पर प्रोफेशनलिज्म की बात आएगी, जहां पर इंटीग्रिटी की बात आएगी, जहां पर इंडिपेंडेंस की बात आएगी, वहां कहीं कहीं एआई अपना कंस्ट्रेंट शो करेगी। जी सर, एग्रीड। दूसरी चीज, हमें यह कहा जाता है कि क्लाइंट का डाटा कॉन्फिडेंशियल डाटा है, कॉन्फिडेंशियल डाटा है, कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे मेंटेन करना है, ये भी थोड़ा सा इशू रहेगा, ये भी थोड़ा सा इशू रहेगा। तो कॉन्फिडेंशियलिटी और ये इशू आपके साथ रहने वाले हैं सर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेटअप गाइड फ्रॉम साइन अप टू स्क्रूटनी, इसके ऊपर क्या करना है आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। रजिस्टर ऑन प्लेटफॉर्म, अपलोड ट्रायल बैलेंस और लेजरी, कस्टमाइज प्रॉम्प्ट, रिव्यू एंड फाइनल आउटपुट। ये काम करने का ढंग बताया, इस पे भी हम टाइम नहीं लगा रहे, ये डेमो में भी देख लेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन आंसर सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हर अब साथ साथ ले लेंगे। तो ये था कौशल जी, मैदान जी, जैन साहब और बाकी उपस्थित मेरे मित्रगण कि हम एआई से ऑडिट कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक जो टूल हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और 1 बाय 1 आपको दिखाऊंगा सर कि आपने करना क्या। पहले तो सर आपको यहाँ बता दूं कि इस टूल के लिए आपको जाना कहाँ होगा, क्योंकि डेमो के बीच बीच में आप ये पूछेंगे कि इसका प्राइस क्या है सर, कितने का मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो पहले आपकी वो शांति मैं कर दूं ताकि आप ध्यान दे पाए कि काम करना कैसे है। ठीक है कौशल जी, तो सबसे पहले आपने, जो लोग इसको लेने में इंटरेस्टेड होंगे, उन्हें मेरी वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट पे हर आपके सामने 1 मिनट शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मेरे को सिर्फ। और मेरी वेबसाइट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यस या नो? वेबसाइट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि नहीं, यस और नो? कौशल जी लिख रहे हैं यस, गोयल जी लिख रहे हैं यस, एक यस और कर दीजिए, मैं मान लूंगा हर यस होगा। चलिए सर, ये वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो इसमें बहुत सारे टैब आ रहे हैं। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज की वेबिनार में जो हमारी चर्चा हो रही है, उसके लिए यहाँ पे टैब बना दिया है सर हमने आप लोगों के लिए, वी ऑडिट। वी ऑडिट दिख गया सर आप लोगों को? वी ऑडिट दिख गया, यस और नो? वी ऑडिट दिख गया सर आपको, यस और नो? ओके सर, यहाँ वी ऑडिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ले जाएगा, और यहाँ पर आपने स्टार्ट जर्नी पे क्लिक करना है। स्टार्ट जर्नी पे क्लिक करके जब आप ये फॉर्म भरेंगे, कौशल जी, मैदान साहब, जैन साहब और बाकी लोग जिनके नाम मैं नहीं जानता, जिनसे मैं परिचित नहीं हूं, वो फॉर्म जब ये भरेंगे और साइन अप फॉर वी ऑडिट करेंगे तो आपको 7 डे का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। और हमारी टीम आपको ट्रेनिंग के लिए इंसिस्ट करेगी कि यहाँ से आप कैसे यूज कर सकते हैं, वो गाइड करेगी, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक हर क्लियर हो गया कि आपने लेना कैसे है सर?
चलिए सर, अब चलते हैं सर। यहाँ पे एक बार स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, नई साइट खोल रहा हूँ। यहाँ पर सर मैंने लॉगिन किया weaudit.in और आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पे वी ऑडिट देख पा रहे हैं सर? आप स्क्रीन पे वी ऑडिट देख पा रहे हैं, हाँ या ना? गौरव पटेल जी यस, आशमा जी यस, आशीष जी यस, संयम जी यस। ठीक है सर, वी ऑडिट पे जाना है। जो आप लॉगिन बनाएंगे सर, यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं अपना लॉगिन कर रहा हूँ सर अभी फिलहाल। सर देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, अब पेज आ गया है वी ऑडिट का। यहाँ पर लॉगिन आईडी का है, आप जब इसे बाय कर लेंगे तो आपका नाम भी इस तरह यहाँ पर आ जाएगा। जिन लोगों ने इसको कर लिया होगा साथ साथ सर, वो यहाँ पर तक पहुंच गए होंगे सर। आप लोग पहुंच गए हैं सर? यहाँ तक पहुंच गए हैं सर? तो यहाँ पे लॉगिन कर लिया सर। आपका पहला काम क्या है? आप कौशल जी अब यहाँ ध्यान से समझिएगा सभी लोग। पहला काम है हर आप लोगों का कि ये क्या करेगा, आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली ओरिजिनल होना चाहिए। टैली ओरिजिनल होना चाहिए या जोहो होना चाहिए। पहली बात समझ आ गई सर? जो आपका क्लाइंट आपको डाटा प्रोवाइड करेगा वो टैली में प्रोवाइड करेगा या जोहो में प्रोवाइड करेगा। तो आपने क्या करना है, टैली नो बिजी और मार्क। मदान साहब पूछ रहे हैं बिजी और मार्क। सर बिजी और मार्क को अभी तक ये सपोर्ट नहीं करता है मदान साहब, लेकिन इसका भी हमने एक टूल निकाल लिया है। हमारे पास कन्वर्टर हैं, मेरे पास कन्वर्टर मैंने बना दिए हैं जिससे बिजी का डाटा टैली में, मार्क का डाटा टैली में कन्वर्ट हो जाएगा। आशमा जी पूछ रही हैं एक्सेल से कर पाएंगे? एक्सेल से कुछ कुछ काम हो पाएंगे मैडम जी, कुछ कुछ नहीं हो पाएंगे। कटिंग माई पॉइंट? तो सभी के सवाल मैंने आंसर कर दिए हैं। अब पहले कंसंट्रेट करो करना क्या है सर। आपने क्या करना है सर, साइड बाय साइड अपने यहाँ टैली चला लेनी है। टैली प्राइम लॉगिन होना है। टैली आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? टैली आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? ओके, तो टैली ओपन करके टैली में वो कंपनी आपने कर लेनी है जिसके बैलेंस शीट का आपने ऑडिट करना है, वो कंपनी ओपन कर लेनी है टैली में। वी ऑडिट पे आ जाना है सर, यहाँ पर क्रिएट एंटिटी में जाना है और जिस कंपनी का आपको ऑडिट करना है उसका नाम यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर कंपनी आपके लिए क्रिएट करके रखी है सर, ताकि आपको परेशानी ना हो, टाइम कम लो। तो इसमें एक हम आर्टिफिशियल नेम हमने बनाया बेस्ट डील प्लाईटेक के नाम से हमने एक कंपनी बनाई, एंटिटी क्रिएट है सर। यहां तक समझ आ गया सर? यहां तक क्लियर सर? जिस नाम कंपनी का ऑडिट करना है उसकी एंटिटी बना लो, और मैंने बेस्ट डील बना ली सर। अब आगे चलते हैं सर, यहां पे जाना है आपको मैनेज कंपनीज में। मैनेज कंपनीज पे क्लिक करेंगे तो अगली स्लाइड आ जाएगी सर। मैनेज कंपनीज में मैंने क्लिक किया तो अगली स्लाइड आ जाएगी सर। यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पे ब्लू बटन आ रहा है सिंक कर सिंक। टैली आपकी चल रही होनी चाहिए, सिंक बटन पे आपने क्लिक करना है। मैंने 24-25 का ऑडिट करना है, यहाँ पे सिंक बटन पे क्लिक करूंगा, सारा डाटा सिंक हो जाएगा। सारा का सारा डाटा सिंक हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स। अब कौशल जी यहाँ तक आपको समझ आ गया सर? सिंक तक सभी को समझ आ गया? ओके, अब जैसे ही सिंक पे क्लियर करेंगे सर, यहाँ पे चलिए। सबसे पहले आपके लिए आ रही है फाइनेंशियल रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, लेजर एनालिसिस रिपोर्ट। लेजर एनालिसिस रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ओके सर, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे आता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी बैलेंस शीट पहले बना लें, ऑडिट तो पहले करेंगे। सर आप देखिए, जस्ट इन ए क्लिक ऑफ माउस कौशल जी बैलेंस शीट इज रेडी। शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में आपको स्क्रीन पे बैलेंस शीट नजर आ रही है? सब लोगों को नजर आ रही है?
अब देखिए इतनी देर में आपकी बैलेंस शीट रेडी हो जाएगी सर। कंप्लीट शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस, कंप्लीट फॉर्मेट, कंप्लीट शेड्यूल नंबरिंग, कंप्लीट एवरीथिंग, everything is complete including all schedules, long term borrowings, deferred tax liability, other time liabilities, long term provision, short term borrowing, trade payables, other current liabilities, short term provision, property plant and equipment, non current investment, deferred tax asset, long term advances, current investment, inventories, trade receivable, cash and cash equivalent, अदर एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया है नीचे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज इन स्टॉक एंड ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरी, सिंप्लाई बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, ऑडिटर रेमुनेशन, हर सारी रेशो। आजकल आपको पता है कौशल जी बैलेंस शीट में कंपनी की रेशोस भी देनी होती हैं कौशल जी कि नहीं देनी होती, संयम जी देनी होती है कि नहीं देती हैं? देनी होती हैं। हल तो मैंने आपके लिए हर रेशो की कवरेज भी कर दी। रेशो में क्या देते हैं हम, रेशो के लिए फार्मूला क्या है, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था, रेशो क्या है, एक्चुअल करंट ईयर रेशो क्या है, एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्या है, एनालिसिस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। पहले हमने कवरेज रेशोस दी, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस दी, फिर लिक्विडिटी रेशो दी अलोंग विद द रीजन, मार्केट एसेट टेस्ट रेशोस अब कैलकुलेट होगी, टर्नओवर रेशोस, एक्टिविटी रेशो, वोलेटिलिटी रेशो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। वहां पर कुछ मांगी जा रही है कौशल जी, मैंने 100 से ज्यादा रेशो निकाल दिए। वहां पर कुछ मांगी जा रही है, मैंने 100 से ज्यादा निकाल दिए सर, जस्ट इन ए क्लिक ऑफ माउस। इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग, इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग। हर क्या रेशो निकालनी टाइम कंज्यूमिंग थी कौशल जी, क्या कहना चाह रहे हैं? रेशो निकालनी टाइम कंज्यूमिंग थी ना सर। सब्जेक्ट टू आवर टैली डाटा शुड बी कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट। संजय जी ये तो काम करवाना पड़ेगा ना, टैली डाटा भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए अलग टूल है संजय जी, अगले खंड में जुड़िएगा। आपकी किताबें भी मैं 15 मिनट में बनवाऊंगा, चाहे वो 50 करोड़ की किताब है। पैसे कमाओ दबा के, मनोज लांबा के हाथ जुड़ जाओ बस। गौरव पटेल, यस सर। संजय राठौर, संयम होगा। अब संयम जी कह रहे हैं यस, कैलकुलेटिंग रेशो वाज टाइम कंज्यूमिंग, यस यस यस। अब कौशल जी मदान जी कह रहे हैं हर एक बार दिखाना, क्या दिखाना संयम जी, क्या दिखाऊं सर? दोबारा आपको दिखाए बैलेंस शीट। अब ऊपर आ जाइए सर, यहां पर आपको बैलेंस शीट दिख रही है सर, ये बैलेंस शीट है सर। अब कौशल जी आपने करना क्या है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाइए, या शेड्यूल 3 बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेड्यूल 3 लेजर क्लासिफिकेशन, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी लेजर क्लासिफिकेशन, शेड्यूल 3 एक्सेल क्लासिफिकेशन, एनसी क्लासिफिकेशन यहाँ पे दे सकते हैं। रेशो एनालिसिस पे जाएंगे आप तो कैपिटल स्ट्रक्चर इंडिकेटर, कवरेज रेशो, लिक्विडिटी रेशो, मार्केट रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो सब कुछ आ जाएंगे। यहाँ पर हर आपने अपडेट करनी है सिग्नेटरी डिटेल्स। ये शीट देखिए, ये शीट आपको भरनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको एसएससी का नाम देना है, एड्रेस देना है, पर्सन्स के नाम देने हैं, अपने ऑडिटर फर्म की डिटेल देनी है, यूडीएन की डिटेल डालनी है, सिग्नेटरी की डिटेल डालनी है, ताकि ये तैयार हो जाएगा। तो यहां तक समझ आ गया कौशल जी? मदान साहब, जैन साहब, जहां तक क्लियर? सर कोई क्वेश्चन है सर? इफ वी रिक्वायर change in any figure we need to do the tally or we can direct change। हर डायरेक्ट एपीआई में चेंज कर सकते हैं राठौर साहब, कोई चेंज टैली में करने की जरूरत नहीं है। अभी वो भी दिखाता हूं। अब लोगों का अगला सवाल ये है मदान साहब कि इसको क्या मैं एक्सेल में रिपोर्ट ले पाऊंगा? कौशल जी आप भी चाह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये जो स्क्रीन पे दिखा था, क्या ये सारा सामान एज इट इज मेरे को एक्सेल में मिल सकता है? जी कौशल जी सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? एक्सेल में मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ या ना? कितने लोगों को एक्सेल में चाहिए, यकीन कितनों को नहीं चाहिए? हर कितनों को एक्सेल में चाहिए, कितनों को नहीं चाहिए? हाँ या ना? चाहिए सर। अब सर मैंने इसको एक्सेल में वहां पर नीचे जाना है, आपने क्या करना है सर? अब देखिए स्क्रीन पे तो वापस आइए, यहाँ पर अब जाएंगे जब, अब यहाँ पे थे हर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में बेस्टील में, यहाँ पर आप आ जाइए दोबारा बेस्टील प्लाईटेक पे वापस।
अब हम यहां पर से हर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे दोबारा क्लिक कर रहा हूं। अब फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपने डाउनलोड रिपोर्ट्स में जाना है सर, क्योंकि LLPB नॉन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल्स में आती है या नॉन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल्स में चले जाना। 1 मिनट, ये रिपोर्ट जनरेट कर रही है, 1 मिनट रुक जाइए सर। थोड़ा नेट स्लो है सर, 1 मिनट लग रहा है। ये जितनी देर में जनरेट कर रहा है, मैंने आपके लिए थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पे 2 मिनट, ये हो गया सर इतनी देर में, इतनी देर में हो गया सर। ये 23-24 है, मैंने 24-25 किया और दोबारा इसे कहा, हर 23-24 की फिगर अपने आप इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी यहाँ पे। 1 मिनट और रुकिए सर। मीनवाइल मैंने ये आपके लिए रिपोर्ट डाउनलोड कर ली है, जितनी देर होते हैं सर। यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक्सेल खोली, सर क्या आप एक्सेल फाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? एक्सेल फाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सर कि नहीं? सर एक्सेल फाइल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हाँ या ना? सर एक्सेल फाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना सर लिखिए प्लीज, ताकि मैं आपको डेमो देख पाऊं। सर प्लीज मेंशन whether Excel file is visible on screen or not. Yes or no? कौशल जी 1 मिनट हाँ या ना लिख के बताइए। मदान साहब 1 मिनट लिख के बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। ये एक्सेल अगर आप देखेंगे सर, यहाँ पर कौशल जी आप देखिए, बैलेंस शीट आपके लिए तैयार है। ऑप्शन पे जाके आपने अनेबल कंटेंट कर लेना है। ये सारे शेड्यूल के साथ सर आपके पास बैलेंस शीट 24 की भी सारी फिगर इसने फेच कर ली, 25 की भी फेच कर ली सर। मिली हुई बैलेंस शीट आपके लिए रेडी है सर। ठीक है सर, और नीचे सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। CA firm detail, partner detail, everything is ready for you. Then, in the similar manner, statement of profit and loss account is ready for you for print. Then notes sir, capital account, बैलेंस शीट नोट, रिजर्व एंड सरप्लस, बोरिंग, सारे शेड्यूल आपके बने हुए हैं। सारे शेड्यूल सर आपके लिए हमने बना दिए हैं सर। ये देखिए सारे शेड्यूल, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, सारे शेड्यूल आपके लिए बने हुए आ रहे हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो नहीं बना रहा वो आप चेंज कर सकते हैं। और सर लास्ट में देखिए आप कौशल जी, लिस्टें भी आपके लिए बना दी हैं। बैंक कौन कौन से हैं, अदर बैंक कौन से हैं, अनसिक्योर्ड लोन कौन से हैं, कंपेरेटिव, कैश एंड बैंक बैलेंसेस कौन से हैं, कैश इन हैंड कौन सा है, एडवांस लोन्स एंड एडवांसेस कौन से हैं, जीएसटी के क्या कौन से लेजर है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कौन सी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी हैं, अदर करंट एसेट कौन सी हैं, अदर करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं, डेटर और क्रेडिटर की लिस्ट कौन सी है हर। ओके सर, ये पूरी जितने लेजर आपके हेड थे सबकी आपको मिल गए। देन एनेक्जर पीएल आ जाइए। हर पीएल में डेप्रिसिएशन, अदर बोरिंग कॉस्ट, रेंट, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, स्टाफ वेलफेयर, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, रेट एंड टैक्सी, बैंक लोन, परचेजेस, ट्रैवलिंग, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, बिजनेस प्रोफेशन, मिसलेनियस, पार्टनर रेमुनेशन, एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू। एवरीथिंग इज रेडी फॉर। तो कितने लोगों को हर ये लग रहा है कि आप कुछ इमेजिंग है सर? कुछ इमेजिंग लगा सर? अभी बहुत कुछ दिखाना है, हाँ या ना? यहाँ तक कुछ मजा आया सर? क्वेश्चन जी बैलेंस शीट रेडी हो रही है कि नहीं हो रही सर? कितनी देर लगी? इतनी देर में मैंने आपकी पूरी बैलेंस शीट इंस्टीट्यूट के नए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली तैयार करवा दिया है सर। 6:55 में शुरू हुए थे, 7:01 हुए अभी। गेटिंग माई पॉइंट सर? अच्छा लगा नहीं लगा, हाँ या ना सर? तब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और दिखानी है सर।
Yes or no? Nobody is participating now. Yes, sir, it is perspective. Excellent, कृष्ण कुमार मित्तल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अब आगे चलते हैं, अब दोबारा मैं आ रहा हूँ सॉफ्टवेयर पर। आप फिर दोबारा जाइए बेस्ट डील फ्लाई टेक पे, आपके मैनेज कंपनी के बाद अब आइए, देखिए आपके लिए मैजिक। आपने कहा हर बैलेंस शीट तो बनवा दी, ऑडिट कराया नहीं। मैं कहा कोई नहीं, आपके लिए ऑडिट भी कराते हैं कौशल जी। लेजर एनालिसिस रिपोर्ट पर आप क्लिक कर दीजिए सर। जैसे ही लेजर एनालिसिस रिपोर्ट पर कौशल जी आप क्लिक करेंगे, आपको 100 ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। पहली ऑब्जर्वेशन, कैश क्रेडिट इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम देखते हैं कि एडिशंस की एंट्रीज कौन सी हुई हैं। कुछ ऐसा पैसा तो नहीं है कि कैश शॉर्ट हो रहा था और किताबों में हमारे पास आ गया, तो बाई चांस यहाँ पर कैश क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं है। फिर ये मेरे को बता रहा है फिक्स एसेट अकाउंटिंग हैविंग कैश ट्रांजेक्शन। फिक्स एसेट के कौन कौन से अकाउंट हैं जहां पर कैश ट्रांजेक्शन हैं। फिर ये मेरे को बता रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हैविंग कैश ट्रांजेक्शन। इन्वेस्टमेंट के कौन से खाते हैं जहां कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि लास्ट कैश ट्रांजेक्शन इन इन्वेस्टमेंट कैन इंडिकेट अनडिस्क्लोज्ड इनकम और नॉन कंप्लायंस विद सेबी और आईटी रेगुलेशंस। देन आपको पता है 269 और 269 ST, कैश रिसीट मोर देन 10 लाख। कोई एंट्री पूरे लेजर में अगर होगी आपके टैली के लेजर में, तो यहाँ पर अपने आप ढूंढ के दे देगा। कोई कैश पेमेंट की एंट्री 10,000 से ज्यादा है तो यहाँ आ जाएगी। कोई कैश रिसीट की एंट्री 10,000 से ज्यादा है तो यहाँ आ जाएगी। कैश लेजर रिसीट नेचर की है तो यहाँ आ जाएगी। नेगेटिव बैलेंस इन क्लोजिंग कैश लेजर यहाँ पे आ जाएगा। कैश लेजर में कोई पेमेंट की एंट्री रिसीट के थ्रू पहुंच चुकी है, वाउचर उल्टा डाल दिया, रिसीट को पेमेंट में डाल दिया, पेमेंट को रिसीट में डाल दिया, वो वाउचर भी बता देगा। सर अब ये देखिए सर, जनरली हम क्या करते थे कौशल जी, 100 रुपए के नीचे के जो डेटर करेक्टर होते थे उसे शॉर्ट एंड एक्सेस में डाल देते थे। डाल देते थे कि नहीं डाल देते थे कौशल जी, बताइए हाँ या ना। 100 रुपए के छोटे लेजर हम क्या करते थे जनरली, शॉर्ट एंड एक्सेस रिकवरी या राउंड ऑफ में डाल देते थे। करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन इसके लिए एक लड़के या लड़की की ड्यूटी लगाते थे कि भैया ढूंढ के बता 100 रुपए से नीचे वाले लेजर क्या है। तो मेरे रिपोर्ट ने सर आपका सारा काम कर दिया। ये डेटर लेजर हैविंग स्मॉल बैलेंसेस 100 रुपीज यहाँ आ जाएंगे। आगे देखिए, कस्टमर विदाउट जीएसटी नंबर, इन्हें आपके लेजर से ढूंढ के बता दिए सारे। 1 से 22 है हल 10 एंट्रियां आ रही हैं, यहाँ से पेज आगे करेंगे, आगे वाली एंट्रियां बता देगा। तो कस्टमर विदाउट जीएसटी नंबर यहाँ आ गए भी। लेजर में कौन कौन सी अनरजिस्टर्ड डीलर है, यहाँ से पूरी रिपोर्ट मिल गई। कस्टमर विदाउट पैन नंबर, फुल रिपोर्ट मिल गई। एडवांस फ्रॉम कस्टमर की डिटेल सर यहाँ से मिल गई। डेटर जहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम है सर, वो रिपोर्ट भी मिल गई। यानी ये हमें बता रहे हैं ये वो वाले डाटा है जो डम्मी एंट्री हैं, जिनमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, बुक एंट्री खड़ी है। पिछले साल भी खड़ी थी, इस साल भी खड़ी है, उसके पिछले साल भी खड़ी थी। जिसमें पूरे साल में ट्रांजेक्शन नहीं हुई, उन डेटर और कैरेक्टर्स के लेजर की रिपोर्ट भी दे दी सर आपको। उसके बाद कस्टमर हैविंग बिल वाइज एंट्रीज नोट एक्टिविटी इन टैली भी आ गया सर। डेटर बिल वाइज क्लोजिंग बैलेंस नोट मैचिंग भी आ गया। डेटर पार्टर वाइज आउटस्टैंडिंग एजिंग मोर देन 180 डेज वाले डेटर कौन से हैं वो भी बता दिया सर। वाउचर्स इन डेटर लेजर हैविंग जनरल एंट्री अदर देन इनकम लेजर, वो भी सारा बता दिया सर। नेगेटिव बैलेंस इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपको पता है जब हम इन्वेंट्री की क्वांटिटी डिटेल क्यों नहीं देते, क्योंकि बहुत सारी आइटमों की इन्वेंट्री नेगेटिव में होती है। नेगेटिव में होती है तो हम बताते नहीं, लेकिन ये आपको रिपोर्ट दे देगा। बताना ना बताना तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आपकी इच्छा है। तो उसके बाद आगे हर फिक्स एसेट में एडिशन कौन सी हुई है 5,000 रुपए से लेस देन की। अब देखिए यहाँ पर कितनी डिटेल, जितनी आपको चाहिए सारी डिटेल मैंने आपके लिए फेच कर दी है। वाउचर डेट कौन सी थी, वाउचर नंबर कौन सा था, वाउचर टाइप क्या था, डेबिट नेम कितना था, डेबिट लेजर क्या था, डेबिट लेजर अमाउंट कितना था, क्रेडिट कौन से लेजर को हुआ था, किससे परचेज हुई थी, क्रेडिट अमाउंट क्या था, कहां से इंपोर्ट हुआ है वो भी बता दिया। फिक्स एसेट में कोई क्रेडिट बैलेंस है वो भी बता रहा है। बैलेंस ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी बता रहा है। एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर भी बता रहा है। एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर भी बता रहा है। सोल्ड कोई नहीं है, हर परचेज की पूरी डिटेल आ गई। 7 अगस्त 23 सितंबर ये पॉइंट नंबर 18 में देनी होती है 3CD के। सारी एंट्रियां सर, क्या एसेट खरीदी है, इन्वेंट्री खरीदी है, इन्वर्टर खरीदा है, बैटरी खरीदी है, मोबाइल सेट खरीदा है, मोबाइल सेट खरीदा है, कितने का खरीदा है, किससे खरीदा है, कितने अमाउंट का खरीदा है, हर कंप्लीट डिटेल। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस इन बैंक लेजर्स भी आ जाएगा, हर आउटस्टैंडिंग डेबिट बैलेंस भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे हर आपके पास। एसेट लेजर विद क्रेडिट बैलेंस अदर देन डेटर एंड फिक्स एसेट भी आ जाएंगे। और लेजर हैविंग सेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस अदर देन डेटर एंड फिक्स एसेट। डेटर और फिक्स एसेट के अलावा
कौन कौन से ऐसे लेजर है जिनमें पूरे साल में एंट्री ही नहीं हुई, उसकी रिपोर्ट भी सर आपके लिए प्रस्तुत है। प्रीपेड एक्सपेंसेस की डिटेल आ जाएगी सर, in character having journal entry other than purchase and expenses, supplier bill wise entry is not activated, bill wise outstanding more than 45 days, more than 180 days, लेजर वाइज कंसिलेशन नहीं है, कैरेक्टर और इनकम लेजर्स में है सर। फिर लॉन्ग टर्म्स में क्या क्या सेट है, अनसिक्योर्ड लोन कौन कौन से आए हैं सर, देखिए सारे अनसिक्योर्ड लोन इसने बता दिए, कितने कितने अमाउंट के आए हैं वो बता दिए, कौन से सिक्योर्ड में है कौन से अनसिक्योर्ड में है वो बता दिए, लोन रीपेमेंट कौन सी हुई है सर, देखिए कितना मैजिकल काम सर, 269 एसटी वाली सारी रिपोर्टिंग, पार्टी नेम, अमाउंट किस अकाउंट से हुई क्या हुई, सारी डिटेल डेट वाइज सर, पूरी डिटेल, रीपेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन यहाँ आ गई सर, डेटर बैलेंसिंग इन लोन अकाउंट यहाँ आ गए सर, जीएसटी लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर यहाँ आ गई, टीडीएस लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर आ गई, टीडीएस के हर इंटरेस्ट एंड लेट फीस, प्लीज देखो हर सारे इंटरेस्ट एंड लेट फीस, सारे इंटरेस्ट और लेट फीस यहाँ पे आ जाएंगे, इंटरेस्ट टू पार्टनर कितना है, इंटरेस्ट टू अदर कितना है, इंटरेस्ट टू बैंक कितना है, इंटरेस्ट टू एनबीएफसी कितना है, सारी डिटेल बाइफरकेट होके यहाँ पे आ रही है, सैलरी पेबल हर 120 दिन से ज्यादा आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस विद नो ट्रांजेक्शन, क्रेडिट इन कैपिटल, सर इस तरह से कौशल जी 100 से भी ज्यादा रिपोर्टिंग हमने दे दी है, और आने वाले टाइम में आप 50 से ज्यादा और देखोगे, और एक क्लिक से कितनी बड़ी लेजर क्यों ना हो। अब बताइए कितने लोगों को ये इमेजिंग लग रहा है, ये तो कुछ नहीं, फिर कुछ और दिखाऊंगा आपको। मदान साहब कह रहे थे जादू, मदान जी जादू दिख रहा है कुछ के नहीं दिख रहा, क्या होश उड़ रहे हैं अब कि काम तो कोई भी कर देगा अब तो। सर बताइए, अपनी राय आप लोगों से साझा कर रहा हूं, अपने विचार साझा कीजिए, एक ही घर में बैठे हैं हम सर, आप लोग ही देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वही इसके सदस्य है, तो शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। देखिए कितना जबरदस्त टूल, एक क्लिक किया है हर टैली से सारा कुछ फैच हो गया है, कंप्लीट लेजर स्क्रूटनी हो गई है, जो आपके स्टाफ के 4 लड़का लड़की मिलके पूरे महीने 2 महीने में नहीं कर पाते थे, मैंने हर 5 मिनट में करके दिखाया है, और उनसे ज्यादा डिटेल्ड करके दिखाया है, उनसे ज्यादा एक्यूरेट करके दिखाया है, उनसे ज्यादा इंप्रेसिव वे में करके दिखाया है, उनसे ज्यादा रिलायबल वे में करके दिखाया है, उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिव होके करके दिखाया। कितने लोगों को लग रहा है सर अब ये आपके लिए यूजफुल है कुछ टूल, हाँ या ना? जी कौशल जी, हाँ या ना सर? और कुछ तो दे दो, शाबाशी, पीठ ठोक दो या वैसे ठोक दो सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी की सारी रिपोर्टिंग कौशल जी कहते हैं कि हमें तो एक्सेल में दे दो भैया, तो यहाँ है लेजर एनालिसिस रिपोर्ट सारी, आप लेजर एनालिसिस रिपोर्ट पे कीजिए क्लिक, ये एक्सेल सेव करने को कहेगा, यहाँ पे डेस्कटॉप पे लेजर पे सेव कर लीजिए, ये एक्सेल यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपकी सेव होगी पूरी लेजर सर, यहाँ से ओपन करके आप देख सकते हैं जस्ट में, ये रही हर लेजर रिपोर्ट, और टोटल रिपोर्ट इन जस्ट ए क्लिक, ये स्क्रीन पे हर आपके आ जाएगी पूरी लेजर रिपोर्ट, हर हेड वाइज क्लिक करते जाइए देखते जाइए, और यही है कॉपी पेस्ट करके अपनी रिपोर्ट को टाटा बाय बाय कीजिए। गेटिंग माय पॉइंट सर? कुछ लगा हर अच्छा? मेरे पास चैट नहीं आ रही है, अब क्या चक्कर है, चैट बॉक्स को व्यू नहीं कर पा रहा हूं, आप लोग लिख रहे हैं, चलिए बाद में चर्चा करते हैं अभी इस पे। डेफिनेटली इट इज यूजफुल सर। सर अब आगे चलते हैं सर, सारा का सारा काम आपका यहाँ पर हो गया सर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं बेस्ट डील के ऊपर गया हर, थोड़ा सा कुछ और दिखाता हूँ आपको, 5-10 मिनट और लेकर आप लोगों के। सर लेजर मैनेज कंपनी कर लिया, लेजर एनालिसिस रिपोर्ट कर ली, फाइनेंशियल रिपोर्ट कर ली, अब आइए हर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे सर। अब देखिए आपके लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी मैंने तैयार कर दी है, हर क्लोज 18 कौन सी है, डेप्रिसिएशन वाली,
क्लोज 18 में डिटेल ऑफ सेल टू फिक्स एसेट देनी होती है, कुछ नहीं है हर। डिटेल ऑफ एडिशन ऑफ फिक्स एसेट देनी होती है हर, यहाँ पर आपकी अपने आप बन गई। लेस देन 180 डेज कौन सी है, मोर देन 180 डेज कौन सी है, किस डेट को है, कितने अमाउंट की है, हब बन गई है। ये हर क्लोज 44 का ब्रेकअप बना रहा है। 2 मिनट रुकिए, तब तक हम आपसे बात करते हैं जब तक ये बना रहा है सर। अब आपको क्या लग रहा है कि ये कुछ आपके काम का है या नहीं है सर? आपको लग रहा है सर कुछ काम का है कि नहीं है सर? हमारे कौशल जी चले गए हैं, मदान साहब चले गए हैं। ओके 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 सर, अब आगे चलते हैं सर। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ये क्लोज 44 की रिपोर्टिंग यहाँ पर बना देगा। यहाँ पर ईएसआई की रिपोर्टिंग आ जाएगी सर। यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स कलेक्टेड और पेड की आ जाएगी। यहाँ पीएफ की आ जाएगी। यहाँ पर कैश पेमेंट मोर देन 10,000 की आ जाएगी। यहाँ क्लोज बी में लाइबिलिटी इनकम ड्यूरिंग द ईयर की आ जाएगी। यहाँ क्लोज नंबर 27 में जो इनपुट का टैक्स क्रेडिट की डिटेल देनी है ऑटो फिल होके आ जाएगी। 27A के लिए ब्रेकअप ऑफ लेजर आ जाएगा सर। 34A में अगर टीडीएस है कोई तो 30 टीडीएस की सारी रिपोर्टिंग यहाँ पर आ जाएगी। और अगर आपकी कुछ क्लोज नंबर 40 है, जैसे रेशो एनालिसिस भी हर आपको मैंने दिखाया सारा कर देगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे आप डाउनलोड रिपोर्ट्स में जाएंगे, टैक्स ऑडिट सीसी रिपोर्ट कीजिए, लेजर इंफॉर्मेशन कीजिए, नेट ट्रांजैक्शन कीजिए, कुछ भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं सर। कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सर। पूरी 3CD रिपोर्ट आपकी यहीं से तैयार मिलेगी सर। उसके बाद एक और ऑप्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जीएसटी में काम करते हैं और उनको रिकंसिलेशन करनी होती है 9C के लिए और 9 के लिए। 2A 2B के बुक्स का बैलेंस मैच करने होते हैं और हम कई स्टाफ लगाए रखते हैं इस पे, रातों जागते हैं और ये आपकी बुक्स के हाथ, पोर्टल के हाथ मैच कर कर आपको टोटल रिकंसिलेशन बता देगा कि कहाँ आपकी डिविएशन है, जस्ट इन 1 क्लिक। 9 और 9C का सोल्यूशन दे देगा सर। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें और कौशल जी, इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। और एक ये टूल है हमारा MIS रिपोर्ट। आज के टाइम में बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़े क्लाइंट जो हैं, उनको ये MIS रिपोर्टिंग का बड़ा वो है प्रचलन कि MIS रिपोर्ट चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक फीचर दिया था सॉफ्टवेयर में, जनरेट MIS report in 4 simple steps. Download in MS Excel file, log in to view audit account, sync the data, generate the MS report और MIS report. MIS report में क्या है सर कौशल जी? इसमें एक डैशबोर्ड मिलेगा क्लाइंट को, जिसमें एक सिंगल स्क्रीन पर अपने बिजनेस की सारी की मैट्रिक्स, ये जो है मैं वैल्यू एडिशन की बात करता हूँ हमेशा, तो एक वैल्यू एडिशन कौशल जी आप अपने क्लाइंट को दे पाएंगे। एक वैल्यू एडिशन आप अपने क्लाइंट को दे पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट कौशल जी? एक वैल्यू एडिशन, इसमें क्या है कि हर एक की मैट्रिक्स, आपकी सेल पिछले महीने कितनी थी, इस महीने कितनी है, परचेज पिछले महीने कितनी थी, अब कितनी है, पिछले महीने खर्चे कितने थे, अब कितने हैं, आपके एक्सपेंस कितने हैं, प्रॉफिट कितने हैं, डेटर में क्या इंक्रीज हुई, क्रेडिटर में क्या इंक्रीज हुई, क्या डिक्रीज हुई, इन्वेंट्री कितनी बड़ी, इन्वेंट्री कौन कौन है आइटम की कम हो रही है। मतलब ऑल की मैट्रिक्स रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट is provided just on screen, single page screen on daily basis, instant आप उसे अपडेट दे सकते हैं। उसे कोई जी टैली का डाटा मेरे को भेज दिएगा, जो आपका अकाउंटेंट सारी उम्र नहीं कर पाया, मैं आपको 1 घंटे में करके देता हूँ। रोज की रोज रिपोर्ट भेजा करूंगा। पहले तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आप महीनों बाद भेजते थे कौशल जी, कहीं की बंदों को स्टाफ लगा के ट्रैवलिंग एक्सपेंस देकर। यहाँ पर तो एक क्लिक, कोई ट्रैवलिंग खर्चा नहीं देना, कोई स्टाफ नहीं रखना, कोई कुछ नहीं करना, सारी कॉस्ट आपकी बचा दी और एक क्लिक से आप सारी रिपोर्टें दे पाएंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि सब कुछ एक्यूरेट आ रहा होगा, हमें इसको फिर ट्रेंड करना है, फिर ट्रेंड करना है। जितना जितना हम ट्रेंड करते जाएंगे, जितना जितना स्टाफ को इस सॉफ्टवेयर पे ट्रेंड करेंगे, उतनी उतनी इसमें बेहतरी होती जाएगी, बढ़िया होता जाएगा, क्वालिटी की जाएगी। और यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ सर, ये सॉफ्टवेयर मेरा नहीं है, ये हमने बेंगलोर के एक कंपनी है वी ऑडिट, जिसके साथ टाई अप किया है, उनके साथ कोलैबोरेशन में हम ये प्रमोट कर रहे हैं, कोलैबोरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे एक बहुत लर्नर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है बेंगलोर से, मिस्टर वेणु गोपालन,
जिन्होंने ये सारा काम कर कर हमारे को इतना प्रोडक्टिव टूल दिया है, और इस प्रोडक्टिव टूल को हम और बेहतर, अब मेरे सहयोग से या आप लोगों के सहयोग से हम इसको और बेहतर बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हिंदुस्तान के ऑडिटर्स को ऐसे ही वर्ल्ड के बेस्ट ऑडिटर नहीं किया जाता, हमें क्वालिटी है। हम लेट लर्नर जरूर है, लेकिन लेट लर्नर के साथ हम फास्ट लर्नर हैं कौशल जी। हम लेट लर्नर तो जरूर है, बैक बेंचर तो जरूर है, लेकिन फास्ट लर्नर हैं। इसका एग्जाम्पल है हिंदुस्तान में एनएससी हर हब से बाद लॉन्च हुई ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के रूप में। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रोबेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रोंग, सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा फास्ट, सबसे ज्यादा रिलायबल अगर कोई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टॉक मार्केट का तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। जो एक्सचेंज सबसे बाद आई वो सबसे आगे थी। स्टार्टअप की दुनिया में हमने सबसे बाद कदम रखा, लेकिन आज हम तीसरे नंबर पे हैं। हमने तो चाइना को, यूके को भी पिछाड़ दिया। या यूएस और चाइना दो कंट्री देश की स्टार्टअप में हमारे यहाँ आगे रहेगी। वी आर नंबर 3 नाउ। तो ये इंडियन यूथ की पावर है। जो हमारे ऑनरी प्रेसिडेंट नंदा साहब कह रहे हैं कि हमें 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, वो गलत नहीं कह रहे। जो ये 50 लाख फाइनेंशियल सोल्जर्स की हम फौज तैयार करेंगे, और जो एआई टेक्नोक्रेट्स की फौज होगी। पहले हम सिर्फ ऑडिटर थे, फिर हम कंसल्टेंट हुए, फिर हम टैक्स कंसल्टेंट हुए, फिर हम एडवाइजर बने। आज हमने दुनिया को एआई टेक्नोक्रेट करके बना के दिखाना है, जिसमें दुनिया का हर बैंक, दुनिया का हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दुनिया की हर मल्टीनेशनल कंपनी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक इज्जत की नजर से देखे कि और बता सके कि हम जो काम लोग घंटों में नहीं कर पाते, महीनों में नहीं कर पाते, हमने ऐसे टूल डेवलप कर दिए हैं जो सेकंडों में कर पाएंगे, सेकंडों में कर पाएंगे, सेकंडों में कर पाएंगे सर। इसके साथ एक छोटा सा टूल और है, उसके बाद हम डिस्कशन के लिए सेशन ओपन करेंगे 10 मिनट, फिर 5 मिनट उस टूल पे और लगाऊंगा सर। ये टूल एक्सक्लूसिव मैंने डेवलप किया है सर। इसके लिए आपको यहाँ पर खोलना है सर, जस्ट ए मिनट, जीपीटी में जाना है सर। आप स्क्रीन पे जीपीटी देख पा रहे हैं सर? मेरी जीपीटी देख पा रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? चैट जीपीटी का पेज देख पा रहे हैं आप कि नहीं? हाँ या ना लिख के बताइए, फिर मेरे को छोटा सा टूल आपको दिखाना है। हाँ या ना सर? कौशल जी आप ही बताइए, बाकी लोग तो सो रहे हैं हमारे। हाँ या ना सर? सुनील जी, सुरेंद्र जी, मदान जी, बताइए 1 मिनट के लिए। आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? मेरे पास रिप्लाई बड़े स्लो आ रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि देख पा रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने एक्सप्लोर जीपीटी पे जाना है। यहाँ पर माई जीपीटी पे आप जब जाएंगे, जब आप बाय कर लेंगे तब आप ये सारा कुछ देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक जीपीटी नजर आएगी जिसका नाम है सीए ऑडिट बोर्ड। क्या सीए ऑडिट बोर्ड को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? आप अब तो बता दीजिए हाँ या ना। सीए ऑडिट बोर्ड आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं या नहीं? हाँ या ना सर? ये सीए ऑडिट बोर्ड आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना एक बार बताइए सर। चलिए मैं मान लेता हूँ कि देख पा रहे हैं। तो खैर हमने क्या करना है, ये सीए ऑडिट बोर्ड हमने एक टूल डेवलप किया जिस पे आपने जाना है। जैसे हमने ये बैलेंस शीट बनाई थी सर, अभी हमने बेस्ट डील की बैलेंस शीट बनाई थी। ये बैलेंस शीट बनाने के बाद इसको दे दो सर। सर ये बैलेंस शीट मैंने इसको जैसे दे दी। अब बैलेंस शीट देने के बाद सर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मेरा एक प्रॉम्प्ट है, जो आप इसको प्रॉम्प्ट को यहाँ पर कॉपी करेंगे बैलेंस शीट ऑडिट विद एआई में।
इसको मैंने हर कॉपी किया हर प्रॉम्प्ट को, और कॉपी प्रॉम्प्ट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैं इसे कह रहा हूँ इसका एनालिसिस करके बताओ। अभी आप देखिए स्क्रीन पर सारा एनालिसिस आपके लिए कर देगा। बैलेंस शीट बन के आई, बैलेंस शीट आपने इसको दी, जिनकी दूसरे सॉफ्टवेयर में है, जिनके पास टैली नहीं है, जोहो नहीं है, जो इसका यूज नहीं कर पा रहे, उनके लिए टोटल एनालिसिस करेगा और आपको कंप्लीट रिपोर्टिंग इस बैलेंस शीट की स्क्रीन पे दे देगा। कंप्लीट कहाँ कहाँ डिविएशंस हैं, जस्ट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। कुछ टाइम लग रहा है, तब तक हम और बात करते हैं। तो सर अब जब तक ये जनरेट हो रहा है, इसको जनरेट होने दो, इसको देखते हैं हर बाद में। अब हम मीनवाइल अपने पार्टिसिपेंट्स के व्यूज में लेना चाहूंगा। जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनमें ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रीन पर आए और अपने व्यूज शेयर करें। जो कोई स्क्रीन पे आना चाहता है वो मेरे को रिक्वेस्ट भेजे, और मैं उनको परमिट करूंगा, वो स्क्रीन पर आकर अपनी बात कह सकते हैं। अभी कौशल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कौशल जी, मैं आपको अलाउ किया है सर, आप एक्सेप्ट कीजिए अपने रिक्वेस्ट को और स्क्रीन पे। कौशल जी अनम्यूट करिए और बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं सर। कौशल जी अनम्यूट योरसेल्फ, यू आर ऑन द स्क्रीन सर। जी कौशल जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये तो एक बड़ा मैजिक है, और मैं समझता हूँ कि भी जो जिस चीज़ की हम लोगों को इंतजार थी वो आपने आज पेश कर दी, और इट्स अ ग्रेट। और ये तो हम लोगों को बस अभी उतावलापन ये है कि भी हम लोगों को बताओ कि इसको कैसे बाय करें और कैसे इसको यूज़ करें। यूज़ करना तो आपने बता दिया, अब वो सिर्फ इसको ये पूरी कि ट्रेनिंग देंगे आपको, पूरे सपोर्ट करेंगे। आप सिर्फ वहां पे जो लिंक आपकी बताया है वहां से आप आपकी बस सपोर्ट, डेमो बुक कर लीजिए सर। जी जी, आपकी सपोर्ट हमारे को हमेशा रहती है, और हम लोग इस चीज़ के लिए आपके बहुत ही ग्रेटफुल भी हैं और बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और ये हमें बड़ी खुशी होती है कि भी आप जैसे होनहार बंदे जो यमुनानगर से बिलोंग करते हैं, जिनका कि नेटिव यमुनानगर से रहा है, जुड़ाव यमुनानगर से रहा है। और आज मैं आपको बता देता हूँ, आपके इस बॉक्स में ना जी हमारे एसपी बबूटा जी भी हैं। वो भी एक बहुत ही सीनियर चार्ट अकाउंटेंट हैं, शायद मेरे ख्याल में है जी। हमारे उनको चंडीगढ़ बारे से में ही है सर वो। है जी, और चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। वो बहुत पुराने समय से क्या कहते जो है, उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि भी ऐसे ऐसे सीनियर आदमी जो है वो आपको अप्रिशिएट करने के लिए आपके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि बैंकों के डायरेक्टर भी रहे हैं, एनआईआरसी के सेक्रेटरी भी रहे हैं, और बाकायदा बहुत बड़े ओहदे पे रहे हैं। जी सर, इट्स अ ग्रेट एंड वी आर वेरी ईगरली वेटिंग फॉर कि भी इसको कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑडिट का सीजन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और हम लोग इस चीज़ के लिए है कि भी ताकि जल्दी से जल्दी इसको यूज़ करें, और जल्दी से जल्दी इसका जो है वो हमारे को ये कोई लिंक भेजो कि इसको बाय कैसे करें, कितने में बाय करें, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जी आपकी प्राइसिंग बड़ी रीजनेबल होती है, मैं समझता हूँ। जी और यूटिलिटी तो आपने दिखा दी। इसमें सिर्फ एक जो है थोड़ा सा, जैसे संयम ने भी बात करी थी कि भी बिजी और ये आपका मार्ग, और अभी क्योंकि थोड़े बड़े जो सीनियर जो जो सॉरी जो बड़ी कंपनीज हैं वो सैप में या ईआरपी में भी गई हुई हैं, तो उसका भी एक जरा थोड़ा सा समय के मुताबिक थोड़ा सा उसका भी एक कैसे सर, उनको एक्चुअली में कॉन्फ़िगर दिक्कत क्या आ रही है, टैली और जोहो इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं, बिजी सपोर्ट नहीं कर रहा, ये ईआरपी वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी कम हो जाएगी। अभी तक ये दिक्कत, धीरे धीरे वो करेंगे लोग या सोल्यूशन निकलेंगे। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं ना कि भी मार्ग को हम लोग जो है वो कन्वर्ट कर कन्वर्टर सकते हमने हैं बना या लिया सर, मार्क और बिजी का तो बना लिया है। हम्म। वो मार्क और नहीं बिजी से टैली में कन्वर्ट हो जाएगा, टैली से इंपोर्ट हो जाएगा सर। नहीं, चलो गुड गुड। आप लोगों इसको को आप टैली लेनी पड़ेगी सर, इसके लिए टैली ओरिजिनल आपको बाय करनी पड़ेगी बस। नहीं, टैली तो हम लोगों के यहाँ तो टैली ओरिजिनल ही हाँ होती बस है, बस जो भी ठीक है, हमारे बस क्लाइंट, उनको उनको कोई जरूरत नहीं सबके है। पास टैली ओरिजिनल है। लेकिन पर ये होता है कि कुछ जो क्लाइंट्स हैं ना जी, जिनका कि अब इनकी भी टर्नओवर ज़्यादा है, जैसे अभी हमारे किसी कुलीग ने भी कहा था कि जहाँ की ब्रांचेस बहुत सारी हैं, तो उनकी ब्रांचेस काफ़ी होती हैं, तो उन केसेस में भी हम लोगों को चाहिए होता है कि भी वो सैप पे काम कर रहे हैं, कुछ ईआरपी पे काम कर रहे हैं, तो
वो भी एक उसको भी थोड़ा कॉन्फ़िगर करने की, चाहे भले थोड़ा समय लग जाए उसमें। हाँ, तो कोशिश क्योंकि कर टैली रहे में हैं। आए आए संडे हमारी कोशिश है कि हम कभी नया टूल लेके आए सब, धीरे धीरे डेवलप नहीं कर रहे हैं। चलो, संडे अच्छी कुछ बात ना कुछ कर रहे हैं। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसको बस अब आप बताओ कि भई हमें इसको लिंक भेजो, हम लोगों ने इसको बाय कैसे करना है, बस वो बताओ आप हमारे जी को। सर, मैं भेज दूंगा। हाँ, प्लीज़ सर। ठीक है सर। धन्यवाद बहुत आपका फॉर दिस काइंड एफर्ट्स, जो आपने ये एफर्ट्स करे हैं और एक एजुकेट करने के लिए हम लोगों को जो है वो हमें एजुकेट भी किया है, सभी लोगों को बताया भी है, और आगे आने वाले समय में सबको सपोर्ट भी करोगे। इट्स अ ग्रेट। हाँ जी, हम लोग बहुत ही इस चीज़ के लिए आपके आभारी हैं। वी आर वेरी थैंकफुल। जी, जैन साहब भी हमारे पास करनाल से अवेलेबल है। जैन साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? विकेश जैन जी हैं करनाल से, बहुत सीनियर मेंबर हैं ये भी हमारे। रुचि जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, मैं स्क्रीन पे वन बाय वन सबको परमिट कर रहा हूं, जो लोग अपनी बात कहना चाहते हैं वन बाय वन के। जी संजय जी, आप कहना चाहते हैं कुछ? राठौर साहब, आप कहना चाहते हैं कुछ? तो अनम्यूट कीजिए, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग संजय जी, कैसे हैं? सर बढ़िया। सर ये जो टूल है वो काफ़ी बेनिफिशियल है, जी बट सर। आई थिंक कि मतलब हमें, वैसे तो बेसिक ही क्वेश्चन है, मतलब जैसे अगर हम इस टूल को लेके सीधा एपीआई पे जंप करने से पहले हमें जी जो बैलेंस शीट है वो हमें टैली में एक अपने शेड्यूल 3 के हिसाब से, या हम कहें कि जो अपना नॉन कॉर्पोरेट वाला है उसके हिसाब से हमें वो पूरी बैलेंस शीट टैली में फ्रीज करनी पड़ेगी। नहीं सर, ये जरूरी नहीं है। आप टैली में जितनी बनी है उतनी कर लीजिए, आपकी बैलेंस शीट उतनी बन के वहां पे आ जाएगी। बाकी आप एक्सेल में खुद कर सकते हैं एडजस्टमेंट, वो टैली में अकाउंटेंट उनका अपने आप करता रहेगा बाद में। अच्छा, मतलब ये एक तरीके से दोनों टेक्निकली। तरीके से परमिट है। आप पहले टैली अपडेट करके डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, हम्म। और डायरेक्ट आप टैली से पहले एक्सेल में इंपोर्ट कर ले, एक्सेल अपडेट कर ले, और बाद में टैली में एंट्री कर ले। ओके सर। और सर ये जो अपनों ने जो ये एक्सेल में एक्सपोर्ट करा था डेटा बैलेंस शीट का, क्या जी, ये फिर लिंकेज आएगा, शेड्यूल लिंकिंग जैसे अपने टैली में एक्सेल हाँ में जी, हाँ करते जी, हाँ जी। हैं? ऑलराइट सर। विद सारे शेड्यूल कंप्लीट आएंगे आपको। ठीक है सर। बाकी सर एक रिक्वेस्ट थी कि जैसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो मिडिल लेवल क्लाइंट्स है या तो टैली में होते हैं या बिजी में होते हैं ज्यादातर। जी। तो एक आपने अभी बोला था कि हमारे पास टूल है जिसको हम बिजी टू टैली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जी तो सर मैं चाहूंगा कि प्लीज आप उस पर भी गाइड करें या हेल्प करें ताकि वो सर, प्रॉब्लम भी इसमें ना solve दो चीजें हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वो टूल जो बिजी से टैली का है कन्वर्ट करने का, अगर आप अपना बाय करना चाहते हैं तो 9,000 रुपए का है सर वो। ठीक है। और दूसरा हमने सुविधा ये दी है, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास तो एक दो कंपनी है, मैं तो टूल लेके क्या करूंगा। हम्म। तो उनको कहा है कि पर कंपनी हमें कन्वर्जन चार्जेस दे दीजिए, आप बिजी का डाटा दे दीजिए, हम टैली में कन्वर्ट करके दे देंगे। सर वो कन्वर्जन चार्जेस फिक्स है कंपनी वाइज या नंबर ऑफ एंट्रीज के नहीं बेसिस नहीं, पे? वो 9,000 रुपए में आपकी अनलिमिटेड कंपनीज हैं, एक साल के चार्जेस है 9,000 रुपए। 9,000 रुपए एक साल के हाँ ना? जी, ठीक है तो 9,000 सर, प्लस जीएसटी। ठीक है, वो इजी टू यूज है, मतलब जीयूआई उसका इजी है फॉर नहीं, अस? थोड़ा ही ट्रेनिंग चाहिए होगी, इतना इजी नहीं है। बिना जहाँ थोड़ा सा डेमो दिया तो आपको आसान लग रहा है, हम्म। एमए में एक क्लास चाहिए होगी आपको। ओके सर। ऑलराइट सर। और और इसमें भी क्या है, थोड़ा सा इसमें भी एलोबरेट कर देता हूँ, जो यूजर्स अभी अवेलेबल हैं, कि इसकी भी प्राइसिंग सर हमने ना पर कंपनी रखी हुई है। जैसे ये वी ऑडिटर आपने टूल देखा, तो आप 25 कंपनी के लिए, 100 कंपनी के लिए, 200 कंपनी के लिए वैसे खरीद सकते हैं, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है। और जो नहीं खरीदना चाहता उसको हम ये फैसिलिटी भी दे रहे हैं कि आप हमें टैली का डाटा दे दो, टैली का हम कन्वर्ट करके आपको दे देंगे, पर कंपनी चार्ज कर लेंगे आपसे। राइट। मतलब स्टिल कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी से कन्वर्जन नहीं है, लेकिन हमें बैलेंस शीट रेडी मिल जाए तो हम अपना ऑडिट अपने आप कर लेंगे, आप हमें सब कुछ बना के दे दो, तो हम उसको टैली के डाटा से सारी रिपोर्टें जनरेट करके उसको भेज देंगे। ये सर्विस हम दे रहे हैं सर जैसे अपना ये एआई जो टूल है बहुत ही बेनिफिशियल है, बट इसमें एक लिमिटेशन ये है कि डेटा प्रिवेसी की, कई सर। क्लाइंट्स का एक थोड़ा सा पॉइंट रहता है कि मैं अपना डेटा क्लाउड पे या कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे नहीं शेयर करना चाहता जहाँ पे कि हमारा काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट रहती है। तो अगर मान लो सपोज हम ये वाला टूल रेफर करते हैं, तो इसमें सर आपका क्या थॉट है टूवर्ड्स द डेटा सिक्योरिटी और द प्राइवेसी सर टूवर्ड्स? देखो, इसमें जो डाटा जो है ना, मैं बता रहा हूँ, इट इज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। हम्म। तो जो डाटा है वो क्लाउड पे जाता जरूर है, लेकिन सारी रिपोर्ट आप पे है, क्योंकि डाटा तो टैली पे है।
तो टैली से सिंक कर रहे हो आप, वो तो डाटा पढ़ रहा है टैली वाला सिर्फ, कोई उनके पास डाटा ऐसा पड़ा नहीं है कि वो आपका यूज कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। वो तो आपके ही तो टैली से इंपोर्ट किया, नहीं तो आपके टैली ले लेता सीधी। टैली से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे बीइंग ऑडिटर क्लाइंट आपके पास लेके आया डाटा, उस डाटा को हमने एक्सट्रैक्ट करके आपको दे दिया। राइट, तो आप कह रहे हैं कि मतलब इसका एक्सेस किसी और के पास नहीं हो पाएगा। आपका यूजर आईडी पासवर्ड तो आपका है ना। सर जैसे यूजर आप इसमें प्लान देखेंगे ना, अभी जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें डिफरेंट प्लान है, और हर प्लान के नीचे लिखा हुआ कि कितने सब यूजर आप बना सकते हैं। तो हर सब यूजर का अलग पासवर्ड क्रिएट हो सकता है, उसको उतनी कंपनी की एक्सेस रहेगी। सपोज आपने मेरे को एक सब यूजर बनाया, तो आपने मेरे को उसी कंपनी के राइट दिए हैं जिसके देना चाहते थे, बाकी कंपनी का कोई डाटा नहीं वो देख पाएगा। आपका स्टाफ भी नहीं देख पाएगा, जिसको जो राइट दोगे वो ही देख पाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, एनी अदर पार्टिसिपेंट? मनोज जी, एक छोटा सा क्वेरी है। जी जी। अगर समझिए हमारा एक क्लाइंट है जिसकी हिंदुस्तान भर में 15 ब्रांचेज है या 20 ब्रांचेज है, और हर एक ब्रांच का अलग टैली रखा जाता है, लेकिन फाइनल बैलेंस शीट एक की बनती है, तो उसको इसमें सॉफ्टवेयर में कैसे इंटीग्रेट करें? सर उसका अलग अलग इंपोर्ट करके कंसोलिडेशन का एक टूल बना रहे हैं, हमें उम्मीद है कि सितंबर से पहले दे देंगे भी। अगर आपकी मल्टी ब्रांचेस भी हैं तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको मिले। वी आर वर्किंग ऑन दैट। अभी नहीं है सर वो, लेकिन उम्मीद है कि पूरे उसकी मिल जाएगा। अच्छा, और दूसरा, अभी जैसे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन कॉर्पोरेट वगैरह आया है जी, तो कईयों का ओपनिंग WDV जो है वो WDV है, वो ग्रॉस वैल्यू और ये नहीं मिलेगा, तो उसको क्या हम बाद में एक्सेल में लेके एडिट कर सकते हैं? हाँ, एक्सेल में लेके आप एडिट कर सकते हैं, जो मर्जी चेंज कर लो। और दूसरी चीज ये है कि वहां पर क्या कि इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि अगर नहीं अवेलेबल है तो वहां पर आप क्वालिफिकेशन दे दो। वो क्वालिफिकेशन क्या डालनी है उसका सजेस्टेड फॉर्मेट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और अगर मैं कुछ भी अमेंडमेंट करूं वो एक्सेल नोट्स में वो ऑटोमेटिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंक है हो जाएगा कि हमको पूरा लिंक एक्सेल में आप कुछ भी कर सकते हैं एक बार इंपोर्ट करने के बाद? नहीं, मैं समझो नोट में अमेंड करूं तो वो मेन बैलेंस शीट में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक? हाँ जी हो जाएगा, फार्मूला लिंक है हर। ठीक है सर, थैंक यू। थोड़ा सा आप यूज करेंगे ना, 2-4 बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओके हो जाएंगे आप। ठीक है सर, इसी पॉइंट पे एक थोड़ा सा क्वेरी थी। जब हमारे मल्टीपल ब्रांचेस है, सपोज 15, तो उसमें हमारे पास टैली पे एक फंक्शनैलिटी आती है। सपोज मेरी 5 ब्रांचेस है तो मैं 5 ब्रांचेस ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद में क्यूमुलेटिव डेटा में जैसे कॉलमनर फॉर्म में एक होता है ना कि कॉलम न्यू डाल के, तो वहां पे हमारा 5 ब्रांचेस का टोटल आ जाता है। तो अब इस टूल में जाके मैं जब सिंक करूंगा तो वो टोटल की ही तो बैलेंस शीट देगा हमें। अगर वहां से सिंक करोगे तो टोटल की दे देगा हर। तो इट मींस हमारी जो 5 ब्रांचेस हैं वो हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल फिर आपकी इस रिपोर्ट में आ सकता है ना, फिर उस बेस पे आ सकता है। अगर आप वहां से आप सिंक कर लेते तो वैसे आ जाएगा। ठीक है सर, बस एक व्यू था तो मैंने शेयर करा आपसे। जी। एनी अदर पार्टिसिपेंट वांट टू से एनीथिंग? यस, एनी अदर पार्टिसिपेंट? पारस जी, समीर जी, सुरेंद्र जी, प्रकाश जी, कोई भी जो भी है, किसी ने अपना व्यू शेयर करना हो? जैन साहब, अगर कोई क्वेरीज नहीं है तो हर हम एक बार वाइंड अप करें सेशन। If there is no query left, should we wind up the session? One pending request. जी प्रकाश जी, मैंने अलाउ कर दिया है आपको, एक्सेप्ट कीजिए। जी प्रकाश जी बोलिए। सर आपके आइडियाज तो बहुत अच्छी है जी सर। इसका कॉस्ट थोड़ा कुछ जिक्र नहीं हुआ इसका। जी सर। इसका कॉस्टिंग का कैसे आप बताया नहीं? आप वहां पे जाएंगे ना, जहाँ पे आपको लिंक दिया है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 7 डे का ट्रायल फ्री है। ओके। वहां पे अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे डिफरेंट प्लान है।
कि आप 25 कंपनी वाला प्लान लेते हैं तो ये रेट है, 100 वाला लेते हैं तो ये रेट है, 200 वाला लेते हैं तो ये रेट है, अनलिमिटेड वाला लेते हैं तो ये रेट है, पर कंपनी वाइज रेट है। ओके ओके तो सारे प्लान सारे वहां से आपको दिख जाएंगे सारे। सर डेमो में जो है वो हमें हेल्प करेंगे आप करके भी इसको ऐसा ऐसा है? हाँ जी, हम इस तरह के ट्रेनिंग सेशन ना हर आए संडे को लेके आ रहे हैं। आप ये विज्ञान पे जब आप इनरोल हो जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन से हमारे नए प्रोग्राम आ रहे हैं, कौन से नए टूल आ रहे हैं। तो आप विज्ञान पे एक बार लॉगिन कर लीजिए, आपको हर इन्फॉर्मेशन आपके पोर्टल पे आती रहेगी, फोन पे आती रहेगी। ओके ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। एनी अदर वन सर वांट टू से समथिंग? I think everyone has said everything. Should we wind up the session now? I think no query left now. So thank you everyone for spending your valuable time this Sunday and discussing and interacting with me and telling and sharing your views also for updating the software. So thank you everyone once again for spending your valuable time with us and always appreciating the Bijgyan for their effort. Thank you so much. So we are winding up the session now.